السلام علیکم, صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. فائنلی پورے پاکستان میں سردیاں آ ہی گئی ہیں, اور اب سردیاں کیا آئی ہیں, سردیوں کی چھٹیوں بھی بالکل یہ سر پہ کھڑی ہیں. تو اب ایسا ٹائم ہے کہ سارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ پلان بنائیں سردیوں کی چھٹیوں کا, اور کہیں نہ کہیں کسی نئی جگہ پہ. پاکستان اتنا خوبصورت ہے, اور اب ڈفرینٹ پروونسز میں بڑی بڑی خوبصورت جگہیں ہیں جو ابھی بھی ایکسپلور کرنا باقی ہیں. ہم ناردرن ایریاز سے چلے جاتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں بھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں, سندھ میں اتنی خوبصورت خوبصورت جگہیں جن کو بھی ایکسپلور کرنا باقی ہیں, پنجاب میں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں پر ابھی جانا باقی ہے. تو اگر ہم صرف پاکستان کے اندر کی ٹورزم دیکھیں نا تو بہت کچھ ہم سب لوگوں کے لیے. تو پلان بنائیں, اور پلان بناتے ہوئے ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں فیملی ساتھ جا رہی ہے, افورڈیبل چیزیں ہونی چاہیے نا, ایسی جگہ جائیں جہاں پر ہمیں چیزیں سستی پڑ جائیں, جہاں پہ ہمارے اسٹے آسان ہو. کیونکہ دیکھیں بیرون ملک جب آپ جاتے ہیں نا تو یقین مانیے آپ کو ٹینشن ضرور ہوتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. پھر خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایمرجنسی ہو جائے, کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے, پھر آپ کیا کریں گے. پھر ساتھ میں کھانے کے بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ حلال حرام کے, تو بڑی چیز انسان کو سوچنی پڑتی ہے. پیسہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک لگ جاتا ہے. تو کیوں نہ پیسہ لگا کے آپ خوبصورت خوبصورت جگہ جو پاکستان کے اندر ہی ہیں انہیں کو انجوائے کریں, اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بات سنیں, ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے, اور یہ آپ اور میں ہم جیسے لوگ ہی جو ایمبیسڈر بنتے ہیں, جن کی وجہ سے پھر باہر سے لوگ آتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے. آج میرے ساتھ شو میں جو میرے سیلیبریٹیز ہیں ان کو بہت شوق ہے گھومنے پھرنے کا, اور وہ پاکستان ناردرن ایریاز اور بہت ساری جگہوں پہ خوب ٹھیک ٹھاک گھوم کر آئے ہوئے ہیں. اور اگر میں ان سے پوچھوں کہ بھئی کون سی جگہ جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے بہت اچھی ہے تو وہ آپ کو بتا بھی سکتے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں انہیں کو بلاؤں, اور یہی لوگ آپ کے گائیڈ ثابت اور آپ کو بتا سکے کہ ہاں بھئی اگر آپ نے جانا ہے, آپ نے پلان کرنی ہے سردیوں کی چھٹیاں, تو آپ کو کہاں جانا ہے. اور اس وقت کیونکہ برف بھی پڑنے والی ہے تو کون سی جگہوں پہ جانا زیادہ سیف ہوگا. یہ نہ ہونا کہ آپ کہیں جائیں تو پھنس جائیں. یہ لوگ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں. جی تو کدھر جانا ہے, کہاں کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے, یہ میرے سیلیبریٹی گیسٹ آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری امبر خان موجود ہیں, کرن خان موجود ہیں, وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. اور ایک اور خان ہمارے ساتھ دانیال خان موجود ہے. السلام علیکم دانیال, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, بڑی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں. اماں ان کی جناب ہمیں بڑی پیاری لگتی ہیں, ہمارے شو میں اکثر آتی ہیں, اور بڑے بڑے پیارے کھانے, پیاری پیاری خوشبو والے شیف فرا بناتی ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن آج ہم ان سے کھانے کی بات نہیں کریں گے, پر ہاں یہ ضرور بات کریں گے کہ ٹریولنگ کے دوران کون سی جگہ اتنی اچھی جہاں پہ آپ کو کھانا اچھا ملے. جی جی بالکل, ہاں کھانے کی بات ہوگی, کیونکہ کچھ باقی جگہ ایسی ہیں کہ جو بہت خوبصورت ہے, پر وہاں کھانے جب اچھے نہیں ملتے نا ہم تو دوڑنے کی کرتے ہیں. اچھا ہر جگہ ویسے مل ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ, یا پھر آپ خود ہی کچن میں گھس کر اچھے سے ایسا ہے. ابھی آسانی ہو گئی ہے, میرا تو یہی سین ہوتا ہے کرن کہ میں تو گھس جاتی ہوں کہ مرچیں کم تھی, یہ کم تھا, ایسے بنائے ایسے کریں. وہاں کے شیف بھی بڑے آپ کے ساتھ جو کک بھی ہوتے ہیں وہ بڑے وہ ہے نا کوپریٹ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ بتا دیں. تو میں تو یہ بڑا کرتی ہوں. ہم لوگ جاتے ہیں, میں کہتے ہیں یار گھومنے آئے, کچن میں جانے نہیں ہے خدا کے لیے. نہیں, جب کھانے کا وقت تو تھوڑی دیر تو گھس جاتا, ٹائم ہی نہیں ہوتا. نہیں پراٹھے بنائے ہوئے کسی کچن میں, وہ تو میں پہاڑی پہ گئی تھی کمراٹ پہ, اور کیا موسم تھی کہ پہاڑی پہ جا کے پراٹھے بنا. ہاں میں نے کہا پہاڑی پہ گئی تھی اتنی اونچائی پہ, وہاں جا کے پھر میں نے ان کے چھوٹا سا کیبن تھا, اور وہاں پہ ان کی جو ان کا گوشت بنا ہوا تھا اور پراٹھے بنائے تھے. میں کہا میں بھی بنا لوں, اور کیا میں نے پراٹھے. ہاں نہیں مطلب جہاں رہ رہے وہاں پہ اب دال بھی بنا رہے ہیں کہ نہیں یہ ذائقہ اچھا. اچھا میں اتنا پھنسی نہیں ہوں, گرم گرم نان, دال, ان کی کڑھائی, ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے. اور ماشاء اللہ ٹریول کرتے ہیں نا تو بھوک بھی بڑی لگتی ہے یار, ہم لوگ یہ کھا لیتے ہیں. جب آپ ٹریول کر رہے تھے نا تو ایکسائٹمنٹ لیول اور ہوتا ہے. اچھا وہ سامنے دانیال نے شکل بنائی کہ ہیں بھوک بھی لگتی ہے, ہری مرچیں چاہیے ہوتی ہیں. کیونکہ ہم لوگ جب جاتے ہیں دوستوں میں نا تو یہ کھانا پینا نا بڑا کوئی آخر کا ہمارا وہ پریشانی ہوتی ہے. ہم بس یہ کرتے ہیں کہ زیادہ گھوم لیں, تصویریں لے لیں اور انجوائے کر لیں. کھانا وغیرہ کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا ذرا ان کی نا اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی. وہ بولتے ہیں کہ اچھا یہاں سے بھی کچھ مل رہا ہے نا, کچھ کھا لو اتنا کہ اگلے 2 گھنٹے تک اگر آگے ٹریک کرنے جانا ہے تو پھر ہم سکون سے ٹریک کر لیں. تو لڑکوں کی میرے خیال سے اتنی پریشانی نہیں, لڑکیوں کی پریشانی نہیں ہوتی. ہم یہ ہمارے ہم نے میچنگ کی چیزیں مثال لے کے جانی ہے, ہم نے تیار بھی یہ 2 جینس پہ گزارا کر لیں گے. لیکن 2 جینس پہ میں زیادہ بتا رہی ہوں کہیں بلاگ کے لیے میں تو ابھی بنانی ہوتی ہے. تو پھر مجھے یاد ہے میں تو اپنے بلاگ کے لیے کشمیر جب گئی تھی نا, باقاعدہ وہ چھن 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 پوری میں نے وہ ایکسٹینشن والی ویگ پہنی تھی جیسے مینڈیا. پھر یہاں میرا بیک پیک,
यहाँ मेरे ग्लासेस यहाँ पे मैंने बांधा हुआ और साइड में। अच्छा कहाँ मधुबाला और आई होप जाना था मैं रत्ती गली। जो लोग गए हुए ना रत्ती गली जाने के लिए आप वहाँ घोड़े होते हैं कि घोड़ों पे जाओ ऊपर टॉप पीक पे, फिर वहाँ जाके पूरी एक लेक खूबसूरत तरीके कश्मीर में। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो वजन कम करना है, हाइकिंग मुझे बहुत शौक है, क्लाइंबिंग। मैं 3 घंटे में चली थी ना। ये तो वहाँ पे ये तो इस्लामाबाद का आ गया डायनासोर वैली। ओ हाँ, लेकिन उससे पहले बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह थी। हाँ ये वो था हमारा वो अलग से ना। अच्छा मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोग कितनी दफा पाकिस्तान टूर पे जा चुके हैं? ये बताएं। बहुत दफा जा चुके हैं, बचपन से जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तकरीबन मैंने सारा देख लिया था। स्वात दोबारा रिवाइज करना था, ठीक है ना, वो मैंने नहीं रह गया था। तो इस अब जुलाई में मैं गई थी मलम जब्बा कलाम गोइंग टू कुमराट, लेकिन वाया होते हुए जाना, डायरेक्ट कुमराट जाओ तो कोई 16 घंटे, तो वो तो मुझे नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग नहीं अच्छी लगती। ब्रेकअप करते हुए और आप कौन से सीजन में गई थी वैसे? मैं जुलाई में 14 जुलाई 12 को शायद हम लोग रिकॉर्डिंग पे थे और मैंने इन सबसे कहा था जितनी मेरी जो मैं कहा हम जा रहे हैं, शोर पहले से मचा दिया सब, कोई एंड अप नहीं हुआ। सब ने किसी ने नहीं, मैं मेरी दोस्त और तहसीन हमारे साथ जो था उसने बेचारे हम 2 उससे हम 3 गए और वो 3 हम लोगों ने जो मजा किया है ना, सोच है कहते हैं ना पहाड़ी इलाकों में जाओ तो ज्यादा लोग हो तो मजा हम 3 थे। कंपनी अगर आपकी 2 की भी अच्छी है ना, आपके साथ जो हम सफर है ना वो हर मामले में, आपके घर में या आपके सफर में, तो फिर नखरे ना यादगार बन जाते ना कि ये ना हो ये चाहिए वाली चीजें बहुत इम्पोर्टेंट करो। ये भी सवाल आगे पूछूंगी, ये प्लान से लोग होने चाहिए। तो बिल्कुल लोग का सिलेक्शन जो है ना वो तो आपको अच्छी तरीके से करना है, आपका पूरा अजाब बन जाता है। फिर आप कितनी दफा गई हैं? मैं बहुत दफा गई हूँ, मुझे याद नहीं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं शूट के लिए बहुत दफा गई हुई हूँ। तो बहुत सारी जगहों पे गई हुई हूँ। और हमारी जो क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉर्दर्न एरियाज, ये पाकिस्तान टूर पूरा पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से लेके वैसे ये मेरे ख्याल से कश्मीर के तौली पीर की है। ऊपर से हम लोग बहुत चढ़े थे ऊपर बहुत हाइट पर, वहाँ की सारी ये भी कश्मीर की पिक्चर्स है। और ये वाघा बॉर्डर के आई थिंक के पीछे लाहौर, क्योंकि मुझे वाघा बॉर्डर बहुत पसंद है। मैं जब भी लाहौर जाती हूँ वहाँ जरूर जाती हूँ। बहुत वो इतना एक आपको है ना लगता है कि आप पाकिस्तानी है, वहाँ जाके आपको ज्यादा लगता है। अच्छा मैं अभी तो इतनी बार लाहौर गई हूँ, इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं वाघा बॉर्डर जाऊँ। मैं कह सकती हूँ कि मैंने पाकिस्तान के सारे सूबे देखे हुए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बलूचिस्तान होकर आई, वो मेरा नहीं देखा हुआ था। पंजाब मैंने पूरा घुमा हुआ है, ओकाड़ा क्या तो मुल्तान हो गया, बहुत जगह हो गया, सारी चीजें। और इसके कसूर क्या ऐसी जगहों में भी मैं जा चुकी हूँ, मतलब पंजाब की। फिर सिंध साइड पे मैंने थर वगैरह ये सारी चीजें देखी हुई हैं, शूट के हवाले से ही देखा था। और अप नॉर्थ तो हम लोग जाते रहते हैं, KPK हो गया, ये गिलगित और ये सारी चीजें, चित्राल, किस्सा खानी बाजार में भी गई हूँ, अभी तो याद आ रही है किस्सा खानी। भाई तो पेशावर में जो किस्सा खानी बाजार है उसके चपली कबाब बड़े मशहूर है। दानियाल आप कितनी दफा ट्रैवल जा चुके हैं? और पाकिस्तान में क्या चीजें देखी? वो नमक मंडी है, नमक मंडी, किस्सा मंडी है, किस्सा खानी तो अच्छा मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ जितने आप लोग, लेकिन मैं गया मैं 4 से 5 दफा गया हूँ। आप तो खाना भी नहीं खाते, 4 से 5 दफा मैं गया। 4 से 5 दफा भी कंपैरेटिवली मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, वैसे तो मैंने घूमा है, लेकिन मैं 4 से 5 दफा गया हूँ, अलग अलग जगहों पे गया हूँ। कभी कभी हमारा काम ऐसा है तो ये भी बड़ा अच्छा है, कभी कभार हम शूट के लिए चले जाते हैं। तो मैंने जरा बलूचिस्तान साइड भी देखी है, अप नॉर्थ भी देखा है, लेकिन अप नॉर्थ में जरा मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि हम कराची के हैं। सही बात है। तो वहाँ जब ठंड पड़ती है तो मैं गया भी वहाँ जरा ठंड के मौसम में था, तो वो जो अप नॉर्थ वाला एरिया है वो मैंने प्रॉपर विंटर्स में देखा है। बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अब तुम जाओ समर्स में भी, मैं देख रही थी रील, वो कह रहा है अल्लाह मियाँ माफ कीजिएगा आइंदा इस जगह पे नहीं आऊंगा। वो उस पे लिफ्ट चेयर में बैठे हुए चेयर पे और बर्फ। और हम लोग अभी गए थे ना मलम जब्बा, मैंने कहा यार मेरे दोस्त के साथ अंबर
सर्दियों में अच्छा स्कीइंग करेंगे, मैं भी सोच ही रही थी, मैंने कहा नहीं लेकिन आप प्रॉपर इक्विप्ड हैं तो फिर आपको ठंड नहीं लगती। अगर आप दिसंबर में जाए, मैं दिसंबर जनवरी बहुत सर्दी होती है वहाँ, ऊपर से गिर रही थी, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। अच्छा मुझे लगता है जब बर्फ गिर रही होती है ना उस वक्त ज्यादा ठंड लगती है, जो बर्फ पड़ी भी होती है उसमें ठंड लगती है ना। ठंड स्नोफॉल में आपको ठंड नहीं लगेगी, फिर जब हवा चलती है बर्फ आपको लेयरिंग, हाँ आपको पहनना है फिर भी ठंड होती है। अच्छा मुझे लगता है इससे पहले कि हम जरा आपको नॉर्दर्न एरियाज मालूम जब वगैरह से आगे सवात कलामन लेके जाएं, जो अभी आपने लाहौर की बात की है ना वाकई, क्योंकि ये कैसी चीज है कि लाहौर वाले भी जो प्लान कर रहे हो, और मुझे लगता है लाहौर वाले इस्लामाबाद वाले बड़े लकी हैं कि इनको ये अगर निकले 3-4 घंटे की ड्राइव पे लाहौर से आप निकले जी, वीकेंड पे 5 घंटे 4 घंटे की ड्राइव पे आपको इस्लामाबाद मिल जाता है, ठीक है। इस्लामाबाद से आप 1 घंटा ऊपर चले जाएं तो आपको खैरा गली, नथिया गली वाली गलियात हैं, आप ना ऊपर ना भी जाएं, ठीक है, आप यहाँ पे 3 दिन भी रुक जाए ना, पूरा मजा मिल जाएगा, पूरा आपको मजा मिल जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस्लामाबाद लाहौर में, वो लोग तो जाते हैं, बिल्कुल उनके लिए तो नॉर्मल, हाँ बहुत नॉर्मल। जो लाहौर एग्जैक्टली जो लाहौर इस्लामाबाद में रहे और ना जाए, मैं कहती हूँ बहुत ही क्या करें, ना शुक्र बिल्कुल कदरदार। असल में ये बात है कि उनको कदर नहीं होती, मैं खुद लाहौर की, तो उस वक्त अब फील होता है कि हाय लाहौर में रहती थी, मेरी ये एडवेंचर बड़ी अच्छी जगह है, ये एडवेंचर यार। मैं तो अभी सोचो ये होता है कि छुट्टी हो ना, कहाँ जाए, मैं यहाँ बना रही होती हूँ कि चलो वहाँ चलते, कौन सी जगह है इतनी बड़ी, अभी याद आ जाएगा, ऊपर टॉप पे दामन नहीं ये लाहौर सिंध में, नहीं अभी आएगा पूरी। अरे इंफॉर्मेशन ले ली मैं, दरअसल हर कोई मेरे पे डाल देता है वो जो यार जहाँ पे जाते हैं जहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, हाँ बहुत टॉप पे, और गर्मियों में भी ठंड होती है। भाई बताएं आप लोग जो हमें देख रहे हैं, और आप लोग भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर हम जा सकते हैं। लेकिन आपने अंदरूनी सिंध की बात की, तो एग्जैक्टली आपने जैसे बात की, मैंने सिंध से नाम निकल हाँ भाई आप सोचिए हमारे सबकी। अच्छा ये क्या खैरा गली गलियात में से कोई जगह है? नहीं, ये दरअसल है इस्लामाबाद में जहाँ पर ठहरते हैं, बड़े अच्छे वो हैं, डाइनो पार्क, और ये वहाँ का है, ये उसी का एरिया जहाँ पर हम ठहरे थे। ये IBA वालों के होते हैं गेस्ट हाउसेस, आर्मी के। सबसे पहले से मुझे बताएं ये कौन सी जगह है? ये कश्मीर है, जो रत्ती गली 3 घंटे में मैं चढ़ी थी, और वहाँ पे ये सब कश्मीर की हैं। कश्मीर बहुत ये सब कश्मीर, ये रास्ते में रुक रहे, समोसे, सब ने मुझे पैसे देते थे, लाइक 5-5 हज़ार रुपए, ठीक है। हम लोग कोई 10-12 लोग गए थे, और मैं किताब, समोसे इतने के आए, पानी इतने का आया, किसी ने आइसक्रीम खाई इतने का, मुंशी थी यार अल्लाह 5,000 तो बड़ा पूरा वेग ऑफ ये वो होगा ना कश्मीर का, और वो जो ये हमारा जिसका ये बाहर बैठे हुए थे सब। अच्छा फैशन पूरे अंबर जी क्या फैशन तो पूरा करना है। मौसम अच्छा है ना, मौसम वैसे कहीं भी आप जाओ मौसम अच्छा मिलता है ना, वो जगह एनहांस हो जाती है, और वही जगह में आपको धूप और गर्मी मिले ना, वो नहीं। ये रास्ते में रखी गई, यकीन करो ये वो जगह है, मैं वापसी पे रोई हूँ। ये ऐसा लग रहा है ये लाहौर के पंजाब के ये वो है काफिर कैलाश, ये बिल्कुल बीच में मैं बैठ गई थी चाय पीने। अच्छा कैलाश इज वन प्लेस जो मुझे इतनी कोई पसंद नहीं आई जितना मैंने उसकी एक हाइप सुनी थी। अच्छा मुझे फिर ये बताएं कि आप लोगों ने भी ट्रैवल किया, सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे सस्ता जो वेकेशन स्पॉट है वो कौन सा? सब मुझे एक बताएं। दानियल, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, कि जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ जाए तो एंजॉय करें। मुझे ऐसा लगता है जो सबसे खूबसूरत जगह और बहुत अफोर्डेबल है वो कोटन है। कश्मीर में एक जगह है कोटन, वो मैं समझता हूँ मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत कोई जगह ही नहीं देखी। वो इतनी खूबसूरत जगह है कि मतलब वहाँ छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं, और मैं गया था वहाँ शदीद बर्फ में, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी कोई खूबसूरत पिक्चर है ना दानियाल, तो बताइए। ये है ना, ओके, ये वाली, ये एग्जैक्टली मैं कोटन में, वो जो जिसमें मेरा मुंह छुपा है वो एक स्टोरी है मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। वो हम जरा स्टोरियां भी सुनेंगे क्योंकि सबके साथ बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती है जब जाते हैं, ये भी पूछना चाहते हैं। शुक्र है मेरे ये कौन सी जगह है? ये वो है कलाम है, और जो ये कलाम है, ये हुई कलाम में ऊपर था मैं, यहाँ पे ये है कोटन, ये वाला जो एरिया ये कोटन का है। और कोटन की खास बात बताएं क्या है? कोटन की जो सबसे खास बात है, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कराची से कभी भी जाते हैं ना, तो वहाँ के लोग इतने ज्यादा वेलकमिंग हैं, इतने ज्यादा कि आपको लगता है कि आप कोई फॉरेनर है कि आप गए। और वहाँ का खाना, कभी कभार अगर हम खाना खाना चाहें, और उसके अलावा मैं समझता हूँ वहाँ के फल, कौन सा फल था?
پھل وغیرہ تو مجھے تو یاد بھی نہیں پڑتا کہ ہم نے پھل وغیرہ کھائے ہوں. ہم بولتے ہیں بس ذرا صبح کا ناشتہ ذرا ہو جائے, وہ بھی چائے پی لی. ہاں ناشتہ پراٹھے کھا لیے, انڈے پراٹھے کھا لیے, چائے وغیرہ پی لی, پھر ہم بس صحیح پورے دن کے لیے. ابھی پھل کون کھائے ابھی. ویسے پہاڑوں پہ بیٹھ کے جو انڈا پراٹھا کھانے کا مزہ آتا ہے اس سے اچھی nothing can beat it. اچھی سی چائے اور انڈا پراٹھا, گرم گرم چائے, کھانے کا مزہ ہے وہاں پہ. اچھا تو اور کوٹن کی اور آپ کو لگتا ہے کہ افورڈیبل ہے وہاں جا کے؟ کوٹن ایک بہت مجھے لگتا ہے افورڈیبل اور بہت خوبصورت جگہ ہے. اگر ایک فیملی ہو نا تو میں سمجھتا ہوں دیٹ از ویری نائس. کتنا ویسے آپ کو ٹائم لگا تھا وہاں پہنچنے میں؟ اچھا ہم لوگ یہاں سے گئے تھے اسلام آباد. اسلام آباد سے ہم آگے معلم جبہ سوات گئے تھے, کلام سے پھر ہم کوٹن گئے تھے, ہمیں میرے خیال سے 6 گھنٹے لگے. اچھا کلام سے تم گئے؟ کلام سے گئے. اچھا ہم لوگ جو ہے نا جب گئے تھے نا, دراصل کیا ہوا, وہ ایک لانگ سٹوری ہے کہ ہم لوگ پہنچے ایئرپورٹ اسلام آباد سے, ہم لوگ کوئی سب لوگ تھے. اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوا وین کا. جب وین آئی نا, بڑی بس وین آئی, اس کے اندر ہیٹنگ نہیں تھی, گرمی تھی, تو سب نے کہا چینج کریں. جب چینج کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں وہ آئی کوئی 4 گھنٹے کے اندر. تو ہمارا ٹرپ جو ہے نا اسٹارٹنگ فرام کراچی ٹو اسلام آباد اینڈ ٹو کشمیر وہ بہت لمبا ہو گیا تھا. اور بس کیونکہ کشمیر کے راستے اتنے روڈز پکی نہیں ہیں ابھی, جو کہ آپ کے مری سائڈ یا آپ کو وہاں پہ ہنزا, تو وہ سلو چل رہے تھے, تو وہ ہم دیر سے پہنچے. کرن وہی جس سے ہم نے لیا تھا, میں نے ان لوگ کو بتایا کہ نا ہم لوگ کوئی کتنے 7 لڑکیاں تھیں جب ہم لوگ گئے. ہم لوگوں نے کافی ٹریول کیا ہمارا جو گروپ ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ لوگوں سے اس لیے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت ساری لڑکیاں ہاں بیرون ملک جو ہے وہ پیرنٹس بھی بھیجے میں نا, مطلب میں نے اپنی شادی سے پہلے ملک سے باہر گرلس ٹرپ اور اکیلے سولو ٹرپس بہت کیے ہیں. And my ابو used to be like okay. بالکل پاکستان میں نا وہ ڈرتے تھے شادیوں کی میاں کے ساتھ چلے جاؤ, کے ساتھ جاؤ. ہاں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں, ہمارے اندر بیٹھا ہوا نہیں. اور مطلب سارے لوگ آپ کے اپنے ہیں. میں ابھی جیسے کوئٹہ گئی تو وہاں پر مطلب وہاں کے دکاندار بھی بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں, رکشے والے بھی. ہم لوگ گرلس کا جو پورا پلان تھا, گاڑی واڑی کروائی, صرف لڑکیاں. ایسی ایسی جگہیں ہم نے دیکھی ہیں, لیکن اتنا سا بھی خوف دل میں بالکل بھی نہیں ہوتا, ذہن میں بھی نہیں آتا, کیونکہ وہ لگتا ہے کہ اپنے ہی ہیں سارے. اور مدیہ میں آپ کو گلگت کا بتاؤں, ہم لوگ, مجھے گلگت بہت پسند ہے. اچھا آپ کہتے ہیں نا افورڈیبل کون سا, دیکھا ٹریولنگ کا جو آپ کا خرچہ ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے, پھر وہاں کے رہنا کھانا پینا ہم اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن کراچی سے اسلام آباد کا تو خرچہ ایکسٹرا ہے, وہ تو ہے آپ کا ٹریولنگ کا. آپ کو کرایہ اگر آپ ٹرین سے جائیں, بس سے جائیں, پلین سے جائیں, وہ تو ایک الگ میٹر ہے. وہ سستا ہے. کرن تم گئی تھی, میں فیصل میں جا چکی ہوں بائی روڈ, میں اور نازیہ ہم دونوں نے. لیکن کھانے پینے کی بات کروں تو یہ مجھے گلگت ایک تو خوبصورت بہت ہے. اور وہاں جب آپ نے بات کی فروٹس کی, تو گلگت میں آپ کو فروٹس خریدنے کی ضرورت ہی نہیں, لوگ آ کے آپ کو خود دے رہے ہوتے ہیں. جو موسم کے فروٹس ہوتے ہیں, میں خود رہی ہوں, ہر جگہ 8 دن میں وہاں رہی ہوں. بہت ہی زبردست ہنزا اور گلگت کا میرا ایکسپیرینس, اور مجھے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, جبکہ میں نے پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے, ہر شہر گاؤں سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اور وہاں پہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آپ جائیں تو آپ کو وہ آپ کے مہمان سمجھتے ہیں. جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں, جیسے لوگ ہمارے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ نہیں لڑکیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے, اور اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کے جو مرد حضرات بھی ہر جگہ ہوتے ہیں کہ آپ پریشان بہت زبردست. ہنزا میں لوگ کہتے ہیں وہاں کے خود آدمی, آپ پولیس اسٹیشن جائیے, تھانے میں ایک کرائم ریٹ نہیں ہے. وہاں کا لٹریسی لیول ہی بہت ہائی ہے, وہاں پہ یس کیونکہ وہاں پہ کمیونٹی پولیسنگ بھی اتنی اچھی ہے وہاں کی, تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا آپ سب سے سستی جگہ آپ کو کون سی لگتی ہے اگر لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہو؟ اگر دیکھا جائے نا, میں سمجھتی ہوں پورا پاکستان سستا ہے. میں ایک جگہ بالکل نہیں بولوں گی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. آپ کو جہاز سے جانا ہے, ایئر ٹکٹ ہے. آپ کو بس سے جانا ہے, 6000 میں پہنچ جاؤ. آپ کو کیٹیگری ہے, ہوٹلز کی کیٹیگری, آپ اپنا بجٹ لے کے کریں گے. کھانا پینا سستا ہوتا ہے, دال کھائیں, نان کھائیں, کڑھائی کھائیں, کچھ نہیں, چپلی کباب اتنا سستا ہے. پاکستان میں کہتی ہوں کہ جو لوگ نہیں جاتے بہت غلط کرتے ہیں. جو خوبصورتی, میں مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کھانا پینا, ہم لوگ جیسے گئے تھے, جیسے ٹور لیا, اگر 8 10 12 دن کا ہے, ٹھیک ہے, 60,000 خرچہ آیا تھا ابھی, جیسے کہ 2 سال پہلے. 60,000 میں رہنا, کھانا پینا پر ہیڈ پورا ٹور, جس میں اس میں شاید وہ بھی تھا, گاڑی واڑی سب, ایوری تھنگ. آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ $250
कुछ भी नहीं है, बस $250। अच्छा, और जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतना फिर कम हो जाती है पैसों की, तो आपको और सस्ता पड़ता है। अभी तो बहुत आसानी होगी, जो ट्रैवल एजेंट है वो भी बहुत कम पैसों में लेके जाते हैं। मैंने भी देखा 35,000 40,000 10 दिन का टूर लेके जाते हैं वो, उसमें होते हैं 20-25 लोग होते हैं, उसके अपनी रूम्स देते हैं, तो वो भी बहुत सस्ता पड़ता है। अगर वो ये भी नहीं कर सकते, सबके साथ है, प्राइवेट नहीं है ना, हम तो अपनी मर्जी से हर तरह की कैटेगरीज है। आपको अगर घूमना है, जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप इस तरह भी जा सकते हैं। पूरा पाकिस्तान सस्ता है और निकलें आराम से, आप अपने कम बजट में जा सकते हैं। चले जी, कम बजट की जगह मैंने भी और भी जैसे जानूंगी, ठीक है। और नॉर्दर्न एरियाज के अलावा कौन कौन सी जगह और कहाँ कहाँ पर इनके साथ वो कैसा वाकया हुआ है? हमने सुना है पहाड़ों पे बहुत चीजें होती हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं न जाएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और आज हम बात करें हैं पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं कि जो आप जाके, क्योंकि सर्दियों में आपको पता छुट्टियां आने वाली हैं, छुट्टियों में भाई एंजॉय करें, निकलें। सस्ती जगह भी हैं, महंगी महंगी जगह भी हैं, लेकिन एटलीस्ट निकलें ज़रूर। बच्चों की ना बड़ी यादें जो हैं वो डेवलप होती हैं। बच्चे एक्सप्लोर करने से जितना सीखते हैं ना, मुझे लगता है आपको किताबें भी उतना नहीं सिखा सकती जितनी आपको ये आपकी ट्रैवलिंग सिखाती है। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारा शो देखा जाता है, आप लोग अपने शहर के बारे में बता सकते हैं कि अगर हम आपके शहर में आपको विजिट करने के लिए आए तो आपके शहर में ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपका खाना कौन सा, आपका फल कौन सा है, कौन सी जगह पे जाके रह सकते हैं। सो आप बिल्कुल जनाब हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा शो है टूरिज्म के बारे में। मैं इनसे पूछ रही हूँ क्योंकि इन चारों को बहुत शौक है। और दानियाल के बारे में तो ये बात करी थी कि इसके पास जैसे पैसे जमा होते हैं टूरिज्म चला जाता है। दानियाल, व्हाट इज दिस एटीट्यूड? दिस फॉर सम रीजन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मेरा शौक है, ये बहुत पहले शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी के टाइम पे। फिर जब मैं एक दफ़ा गया था, उस वक्त हम लोग ग्रुप में गए थे, मैं जब तब गया था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वही आपकी वाली बात कि जब आप कहीं से घूम के आते हैं ना, तो जो एक्सपोजर आपको मिलता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। सही बात है। बस फिर उस दिन से लेकर आज तक पैसे तो जमा नहीं हो पाए, लेकिन जब भी जमा होते तो मैं वो आता हूं। अच्छा करता है। बताओ जो सबसे सस्ती और क्योंकि जिसमें एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है, नारान। मैं कहती हूँ मुझे कोई भी कभी भी, नारान इज द बेस्ट जगह। इस्लामाबाद पहुँचो, 6 घंटे में आप नारान है और बस वहीं रह लो, बस बाटा कुंडी नारान। नारान की ब्यूटी डिफरेंट है, नारान की लैंडस्केप्स आपको बहुत प्यारा, मौसम भी मिलेगी, मौसम अच्छा मिलेगा। इसी तरह से जैसे अगर आप गिलगित साइड जाएं, कश्मीर साइड, वहाँ पर आपको पहाड़ मिलेंगे, बिल्कुल डिफरेंट ब्यूटी आपको। अच्छा, मुझे तो एक दफ़ा ही मैंने जो ट्रैवल किया था वो, और मुझे बड़ा दुख होता है मैंने लेट क्यों ट्रैवल किया, वो तभी जब कोविड का टाइम हुआ है। मुझे कहीं किसी और मुल्क जाना था और उन्होंने कहा जी सॉरी जी, अब तो हम ट्रैवल ही नहीं कर रहे ना, आप बाहर जा नहीं सकते, जब बैन लग गया था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा चलो हम मालूम जब्बा चलते हैं ना, और हमने प्लान कर लिया एंड देन वी वेंट टू मालूम जब्बा। और वो हमारी लाइफ का इतना अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बर्फ पड़ी हुई, हमने स्कीइंग की, हमने जिप लाइनर पे किया, मैंने तो वो बंजी जंपिंग भी की, वो जितना से मर के मैंने किया, मैं आपको वीडियो दिखा दूं तो आपने मेरा 1500 साल मजाक उड़ाना है कि मैंने क्या किया है। और मेरे मियाँ ने भी वीडियो बना ली, पता नहीं क्यों ना उसकी कि आने वाली नस्लों को दिखाऊंगा तुमने कितना जरूर कराया। काफी टूरिज्म क्योंकि बढ़ रहा है ऐसी जगहों पे, तो एक्टिविटीज भी ये लोग बढ़ा रहे हैं बहुत। और वो इतना वो खूबसूरत था क्योंकि वहाँ की एक एक चीज आप कहें। मुझे तब वहाँ पे लोगों ने कहा कि अगर आप कलाम सर्दियों में आई हैं, आप कभी गर्मी में आएगी, क्योंकि यहाँ पे महूडन लेक है। मैं गई, उन्होंने कहा वो गर्मियों में आप देखें, वो बहुत प्यारी है। मतलब वहाँ के सारे लोग, एक ग्रीन वैली थी, मैं वहाँ पे भी गई, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, हर मौसम में आप जाएं और ये शहर और सारे एक्सप्लोर करें। महूडन लेक को ना, अभी मैंने अपना व्लॉग में डाला था, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। हम भी गए महूडन लेक, 2 घंटे का जीप में करते कराते, वहाँ जब पहुंचे तो कुछ था ही नहीं। लोगों ने मतलब इन अ सेंस इतना गंदगी की हुई थी ना कि प्लास्टिक की बॉटल्स, कचरा, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सुने, ये फिर मोतबर चीजें, लोग बच्चों को पैम्पर छोड़ाते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे बंद भी नहीं करते। आई डोंट नो वो दूर है क्या है, वहाँ पे क्यों सफाई है, जबकि आप डालें उसको सफाई कर सकते हैं। एक जमाने में अच्छा था। भाई जब आप और मैं इतनी दूर बैठ के हम उस लेक को डिस्कस करें, तो जो वहाँ पे इंतजामिया बैठी, उनको नहीं पता कि वो कितनी जबरदस्त है। ये कहाँ का पानी पी रही, बाय द वे एकदम वीडियो आई। ओह माय गॉड, ये मैं किस्सा सुनाऊं ना, भाई सोच, ये कश्मीर का ठंडा बड़ा आइस वाला जो ग्लेशियर पिघलता है ना, हम सभी, हमारा होटल जो है शारदा के अंदर,
مجھے سب نے کہا کہ اگر تو چیلنج کر رہے ہیں تو میں نہا لوں گی اس کے اندر پانی میں چلی جاؤ. ٹھنڈ مطلب میں کہہ رہی ہوں برف کا پگھلا ہوا پانی. موسم بھی بتا دیں, موسم کون سا تھا وہ؟ گرمی. یہ ہم گئے تھے آئی تھنک اگست تھا, اگست سپٹمبر. اچھا وہاں اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہے نا, گلیشیئرز کا پانی پی لیں, آپ کا پیٹ کھل کر صاف ہو جائے گا. اتنا ٹھنڈا پانی, منرلز ہوتے ہیں اس میں نا, اور اتنا کلین پانی ہضم نہیں کرتے, بہت ٹھنڈا اور اتنا اچھا تسکین والا پانی. مگر یہ اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ اس کے بعد نا میں اور میری دوست, میں کہا تم بھی, میں تو پوری بھیگ گئی. پھر سب تولیے وولیے لے کر آئے کہ بیمار نہ پڑے. میں کہا نہیں کوئی بات نہیں, بڑا مزہ کیا تھا. یہ ابھی ہم لوگ گئے تھے کمراٹ, یہ ہے کلام کے اندر یہ سائیکل ہے اسٹرنگ پہ, انہوں نے کتنی ایڈوانس, آپ یہ دیکھو یہ ہر جگہ ہے, کمراٹ میں بھی ہے اور یہ کلام کے اندر اسٹرنگ پہ وہ ہے, سائیکل کرتے تھے اور سائیکل چل رہی ہوتی ایک کونے سے دوسرے کونے تک, ڈر لگ رہا تھا. یہ وہ کانسیپٹ ہے, یہ باہر کے ملکوں میں بالی وغیرہ میں ہے نا, تو اب کیونکہ میں ابھی اسلام آباد گیا تھا, میں نے اتنے زیادہ فارنرز دیکھے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, مطلب یہاں کیا کر رہے ہیں آپ, کیونکہ دانیال یہاں پہ تو بہت سستا ہے, بہت زیادہ, اور اتنے خوش ہیں وہ لوگ. میں نے اتنے سارے ولاگرز ہیں, آپ دیکھیں نا یہ بہت مہنگی ہے باہر کے ملک میں. چائنا سے لوگ آئے تھے, انہوں نے آ کے پورے وہ ہیں وائر موٹے لوہے کے. میں نے کہا بھائی اگر سائڈ میں گر گئے, بیلنس ہو گیا تو باندھا ہوا ہے تو لٹک جائیں گے. اچھا اس پہ سائن کروایا تھا, وہ اکثر سائن کروایا, زپ لائننگ میں بھی وہ جو سائن آپ کرتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے بھائی کوئی حادثہ ہوا بتا دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک شی جوان میں مجھے بعد میں ہوا کہ میں ویسے انجوائے کیوں نہیں کر سکی. جب میں نے زپ لائننگ کی تو میری میاں بیچارے نے تو انجوائے نہیں کی نا, کیونکہ میں نے اس کو کہا تو میری ویڈیو بناؤ گے. میں بھی کوشش کرتی ہوں مجھے ویڈیو ملتی تو میں شیئر کرتی ہوں ٹیم کے ساتھ. تو اب وہ میری ویڈیو بنا رہے تھے, اس وقت میرا وزن بہت کم تھا تو ان کا ویٹ میرے سے زیادہ تھا, وہ پہلے پہنچ گئے اور میں آ رہی آرام سے انجوائے کرتے ہوئے آ رہی ہوں. جب میں آ گئی تو میں نے دیکھا پیچھے سے ایک بندہ ہوتا اسپائڈر مین والے کپڑے پہنے ہوئے, وہ اب جب میں نے اس کو دیکھ لیا میں نے یہ کرنا ہے. لیکن وہاں پہ پہنچنا وہ عذاب کہ جہاں سے آپ نے زپ لائن شروع ہوتی ہے, میں 3-4 جگہوں پہ پھسلی. اچھا میں پھسلی, مجھے ایک جگہ پہ لگا کہ شاید میں نے اپنی کوئی ہڈی توڑ لی ہے بیک کی, پر اتنی مجھے اخیر آئی ہوئی تھی. اچھا 6-7 لڑکیاں تھیں, سب نے, رافیہ ہم سے سب سے زیادہ ڈیئرنگ تھی نا, وہ پہلے گئی زپ لائننگ, ہم نے یہ شاردا میں کیا تھا کشمیر میں, میں سب سے اینڈ میں گئی. سب نے نہ کیا لیکن سب نے ایک بار کیا. اچھا سب پہنچ گئے بڑے مزے سے, سب ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا رہے. میں کہا میری بھی ویڈیو بنانا. اب میرے ساتھ کیا, میں میرے خیال سے سب سے لائٹ ویٹ تھی, تو میں یہاں سے جو میں چڑھی اور میں بیچ میں رک گئی, وہ آگے تک گئی نہیں. اور پھر سب میرا مذاق اڑا رہے, ارے بھائی کرن پھنس گئی. پھر وہ خیر انہوں نے فوراً ہی ریسکیو والی ان کی بوٹ آئی, رسی پھینکی, وہ ایک ایکسٹرا رسی آپ کو دیتے ہیں, وہ رسی گھسیٹ کے بوٹ سے وہ لے گئے مجھے. میں نے کہا یہ کیا, یعنی سب سے زیادہ انجوائے کرن نے کیا ہوگا, پورا نظارہ ہوا میں. سیکنڈ میں ہی کیا زوم چلے جاؤ فوراً ہی یہاں سے, ڈر لگ رہا ہوتا ہے لٹرلی. خیر زپ لائننگ میں نے جو تمہارا والا میں نے یہاں تھائی لینڈ میں کی تھی, بینکاک, وہاں تو بہت ایڈونچر ہے. یہاں والی سمپل ہے, وہاں تو میں اتنا تھا, اتنا اوپر گئی تھی کہ نیچے چڑھنے میں مجھے چکر آ رہا ہے. ارنگ کھیل, لیکن یہ کون سی جگہ ہے, یہ ارنگ کھیل ہے, یہ بھی آپ کو 45 منٹس 1 گھنٹہ لگتا ہے اوپر پہنچنے میں. ہاں کشمیر میں آپ ٹریکنگ کر کے جاتے ہیں اور وہ ہل کے اوپر ہے, تو آپ کو وہ لاٹھی بھی دیتے ہیں کہ جی یہ آپ رکھیں, آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو, پانی رکھیں, رک کے جائیں آرام سے. تو ہم لوگ پہنچے تھے 45 منٹس. اچھا سنو بوٹس بھی کیونکہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ برف پڑی تھوڑی سی پرانی ہو جائے تو وہ ایسی جم جاتی ہے کہ وہاں بہت پھسلن ہوتی ہے. پھسلن آپ کو ہو جائے, میں تو بہت, بارش اگر ہو جائے نا پھر بہت سلیپری. وہاں پہ تو بیچ بھی رہتے, وہ ایگزیکٹلی آپ کو دیتے ہیں, اس کے ساتھ رینٹ پہ بھی دیتے ہیں آپ کو, رینٹ پہ بھی دیتے ہیں کہ آپ رینٹ پہ. ایگزیکٹلی میں نے بھی رینٹ, بہت اچھے لوگ ہیں, مطلب آپ کو پتا ہو نا جس حساب کی برف اس حساب کے جوتے دیتے ہیں وہ. ہاں بالکل, بارش نہیں ہونی چاہیے, بارش ہو تو بہت سلپری ہو جائے. اچھا ویسے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ ریسکیو کرنا پڑ گیا ہو جیسے ان کے ساتھ سین ہوا؟ مجھے تو میرے ساتھ جو ٹیم تھی, میں شوٹ کے لیے گئی ہوئی تھی, کشمیری گئے ہوئے تھے ہم لوگ, نے بتایا تولی پیر بہت زیادہ اوپر ہے, ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے. میں چڑھی تو وہ آئس جو تھی وہ پرانی تھی, تھوڑی ایسی تھی جیسے کہ ہمارے وہ مل رہے ہوتے ہیں نا, سارے سے بلاکس مل رہے ہیں. تو میں وہاں گئی تو وہاں نیچے کھائی تھی اور میرا پیر ایسا پھسلا ہے کہ بس مجھے اللہ نے ایسا بچایا ہے,
वो टीम मेरे साथ चल रही थी, उन्होंने मेरे बाजू बहुत टाइट से पकड़े और मैं तो बिल्कुल सख्ते में आ गई। मुझे लग रहा था कि ये ना पकड़ते तो मैं तो जाती नीचे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हमने किस्से भी सुने हैं कि लोग इस तरह से डेथ भी हो जाती है, गिर भी जाते हैं, तो मेरे माइंड में वो सारी चीजें चल रही थी। तो वो मेरे लिए ना थोड़ा ऐसा था कि अभी तक मुझे लगता है कि अल्लाह का मुझ पे करम है कि मैं बच गई, वरना कोई ना होता, टीम ना होती तो फिर तो मैं तो जाती। तो ये मेरे साथ बहुत खतरनाक था। इसके बाद मैं बहुत दफा गई हूँ, फिर मैं बर्फ पे थोड़ा सा मैं वही शूज वूज पहन के, पहले इतनी समझ नहीं थी ना, तो वही जॉगर्स पहन के चले गए। तो जॉगर्स पहन के अपने नहीं जाना चाहिए, ये चीज, हाँ ये डोंट, बिल्कुल भी डूज एंड डोंट पे, बिल्कुल आपने ये नहीं पहनना, जॉगर्स नहीं पहनने। आप वहाँ से थोड़ा सा रेंट पे थोड़े से पैसे ले लेते हैं वो आपसे, आप वो खरीदें। अगर आइस पे आपको चलने का बहुत शौक है, पहली दफा जा रहे हैं, मेरी तरह जब मैं पहली दफा, जान की सिक्योरिटी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। उसके बाद से मैंने तो अपने जो जॉगर्स होते हैं, जितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमने लोग कहते हैं मेरे तो बड़े अच्छे वाले हैं तो चल जाएंगे, लेकिन वो आपके बर्फ पे चलने के लिए नहीं, बर्फ के स्नो बूट ही डिफरेंट अलग ही। दानियाल, आपके साथ क्या किस्सा हुआ? मैं ये अपनी यूनिवर्सिटी के साथ गया था, एक ही दफ़ा हुआ है और मुझे नहीं लगता उसके बाद कभी होगा मेरे साथ। हम कलाम में थे, ये थोड़ा सा एक हॉरर और वो साथ साथ है। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ था नहीं था। हम लोग शेयरिंग पे थे यूनिवर्सिटी में, तो मैं और मेरा दोस्त थे, हम लोग रूम शेयर कर रहे थे। तो मुझे याद है कि इतनी ठंड थी, मेरे ख्याल से हम 2 या 3 कंबल लेके हर कोई सो ही रहा होता, और हीटर एक छोटा सा वो होता है जो आपको होटल वाले देते हैं, बिल्कुल लगा हुआ होता। तो मुझे ऐसा याद पड़ता है, जो कि मुझे अभी भी याद है कि मेरी आंख खुली थी बीच सुबह में, तो मेरा दोस्त उठ के वॉशरूम जा रहा था। तो मेरा दोस्त उठ के वॉशरूम गया है और वो बिल्कुल सही था, और 2 मिनट के अंदर मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ें पटक रहा है बाथरूम के अंदर, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान कैसे, मतलब क्यों करेगा वो। और फिर मुझे अपने दोस्त की आवाज़ आई चिल्लाने की। उसके बाद मैं उठ के बाथरूम में गया तो मेरा दोस्त नीचे गिरा हुआ है, उसकी ये वाली जगह होती है यहाँ से खून आ। अब जहाँ तक मैंने उससे पूछा तो मैंने बोला कि ये क्या हुआ है, तो उसने बोला कि भाई मेरा पाँव स्लिप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट स्टिल वो जो शोर था, जो चीज़ें टूट रही थी, अब मैंने जब उससे पूछा तो उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं था। तो खैर ये वो हॉरर पार्ट है, जो ट्रेजेडी थी वो अब मैंने देखा उसका खून निकल रहा है, और मैं खुद यूनिवर्सिटी में था तो मुझे पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। अम्मी ने बस ये बताया था कि हल्दी लगा दें खून रोकने के लिए। अब हल्दी में कहाँ से अब मैं बाहर निकला भागता हुआ, तो वही वाली बात की बर्फ पड़ी थी, तो मैं चप्पल पहन के बाहर निकल गया, क्योंकि मैं जल्दबाजी में किसी को ढूंढ रहा था। तो वहाँ इतनी ठंड थी कि वो चप्पल शायद मेरे पाँव में गई है, अंदर है, क्या हुआ है, तो मुझे सांस आना बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे वैसी ठंड बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। तो जब मैं वहां गया तो मुझे सांस आना बंद हो गई थी। तो फिर बाकी लोगों ने एक गाड़ी करा के, जो होटल वाले होते हैं, करा के पहाड़ के ऊपर जाके मुझे भी और मेरे दोस्त को भी लेके, जिसका खून निकल रहा, उस बेचारे का मसला था, वो देख रहा है कि इसको क्या हो गया, इसको क्यों लेके जा रहे हैं। फिर वो हम वहाँ गए तो ये एक बेसिकली थोड़ी सी ट्रेजेडी थी। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, पता नहीं किस चीज का, और उन्होंने बोला ये बड़ा कॉमन है। उन्होंने बोला जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए बहुत कॉमन है, श्रिंक हो जाती है इस वजह से ठंड के अंदर। मगर वो एक ऐसी ट्रेजेडी है, मतलब आप मुझसे कभी भी पूछ लें, नींद में भी पूछ लें, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन वाकई लोगों के साथ ऐसे वाकयात बहुत होते हैं। आपके साथ ऐसे कभी ऐसा वाकया हुआ? मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। मैं एक शूट पे गई हुई थी, वहाँ पर हम 4-5 लड़कियाँ थे, हमारे 2 रूम थे, 2 रूम में हम लोग थे। वहाँ पर वो पहाड़ी इलाका और इस तरह का था मदिया। अच्छा, हम लोग जैसे कहते हैं ना कि नहीं मैं नहीं मानती, किसको जिन नजर आता है ये आता है, हम नहीं मानते, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है ना उसको पता होता है। अगला बंदा कभी भी बिलीव नहीं करेगा इस बात पे, बोले ऐसी कहानी है, ये है, वो है। अच्छा, मैं वहाँ सो रही थी, रात के कुछ शूट वूट करके, हम तो जल्दी सो जाते थे, अंधेरा होता था, 8 बजे 9 बजे सो जाते थे, सुबह जल्दी शूट के लिए उठना होता था। तो मैं सो गई, 3 बजे थे, 2:30-3 बजे थे, हमारे तो आधी रात थी। लिटरली आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे कान पे किसी मोटी आवाज वाले ने मेरा नाम कॉल किया है। पहले मैं समझी मेरा वहम है, फरा नाम बोला, बहुत मोटी आवाज है। मैंने कहा हमारे रूम में तो कोई मर्द ही नहीं है, लड़कियां हैं सारी की सारी। अरे अब मैंने फिर आंख खोली, देखा कोई भी नहीं। दूसरी दफा इसने कॉल किया, फरा जोर से। मैंने कहा अभी तो कुछ है यहाँ पर, और बिल्कुल अंधेरा, एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, और लड़कियां इतनी मस्तियां कर रही थी। वो तो लेट सोती थी, मैं जल्दी सो जाती थी। उसके बाद मदिया क्या हुआ, मैं इतना डरी हूँ, और सर्दी और कमरे में और भी कुछ था, लड़कियां थी, मतलब मुझे ऐसा किसी ने फील कराया कि मैं हूँ, शरारत मुझे दिख नहीं रहा था। और मैं आपको ये बिल्कुल अपने होशो आवाज में बता रही हूँ कि मैंने वो जो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था ना, सर्दी थी, किसी ने घसीट लिया, घसीटा नहीं, मैंने ना, मैं लेटी हुई थी, लेट कर मैं बैठ गई, अपने ब्लैंकेट को यहाँ उतार के यूं देखने लगी, आयतें पढ़ने लगी, सारी चीजें करने लगी। बड़ी बात है, मेरा खौफ था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। इन्होंने ना, मेरा हाथ यूं था, ब्लैंकेट मेरे पास था, इन्होंने ना ब्लैंकेट को उठा के मेरे मुंह पे डाला,
मैं ये वाला आपको मैं बता नहीं सकती, मैं वो इतना डरी हूँ। ये खुद से लड़कियां तो नहीं थी मस्तियां कर रही, नहीं वो सो रही थी सारी की सारी लड़कियां, वो तो माशाल्लाह वो सारी लड़कियां शूट नहीं है जो मैं रोक पाए मुझे। मैं डर गई, उसके अंदर मैं पढ़ती रही, मैं इतना डरी हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगी, तकरीबन 10-15 मिनट में मुझे नींद आ गई। आप सोच नहीं सकते उस हालत में आपको नींद नहीं आ सकती। हाँ। लेकिन मुझे गहरी नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी हूँ ना, 7 बजे हमारे उठने का टाइम था, तो हमारे बराबर वाले रूम से एक लड़की चीखती हुई बाहर निकली। मुझे कुछ नजर आया, अच्छा मैं तो अपना किस्सा किसी को बता ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मुझे वो भी लग रहा था कि मैं किसी को बताऊंगी कोई यकीन तो करेगा नहीं, तो मैं छोड़ो नहीं बताती, जो हुआ छोड़ दो। और वो इतना चीखती रही, वो थोड़ी छोटी एज की लड़की थी, वो इतना चीखती रही, मुझे कुछ दिखा, मुझे घर जाना है। वो इतनी परेशान हुई, इसको हम संभाल रहे थे, कर रहे थे, क्या हुआ। और मुझे और उसको इतना बुखार। अच्छा मैं आपको बताऊं, अच्छा लेकिन मैं आपको सही बताऊं, हमारे क्योंकि हमने पिछले दिनों शो भी किया था ना, उसमें भी था कि अगर आपको ऐसी कोई चीज अगर यूं आती है तो वो, क्योंकि वो एक आग भी है तो, लेकिन इसलिए अगर वो आपको नजर आ जाए या कोई तो आपको बुखार हो जाता है, जो बुखार को तेज बुखार हो जाता है, इतना तेज कि हम उठ भी नहीं रहे थे, हमारी बॉडी भी इतनी पेन कर रही थी। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी कि हमें ना धीरे धीरे भूल गए। हमें अब याद करते हैं तो याद आता है, लेकिन उस वक्त उसने हमारे दिमाग पे वो हावी नहीं हुई। वो हम भूलते गए, फिर शूट किया, ये किया, फिर रात को नींद भी आ गई। फिर मतलब ये कि कोई बात करता था ना, तो फिर मैंने 2 दिन के बाद अपना किस्सा हमारे होस्ट थे उनको बताया, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसी जगहों पे ऐसी चीजें होती हैं। ये भी शहाबनामे में लिखा है कि जो सबसे ज्यादा इन चीजों का बसेरा होता है वो तो हमने क्योंकि इन्वेड कर लिया है ना उनके इलाकों में, तो सबसे ज्यादा कहते हैं जो पाए भी जाते हैं वो क्या कहते हैं, वो ये पहाड़ है। और जब ये बहुत छोटे छोटे थे, जब ये मोटरवे बन रही थी, तो उसके बाद भी बड़े किस्से कहानियां सामने आई। तो वो कहते थे कि मजदूर कहते थे हमें पता नहीं चलता था कि पहाड़ों के ऊपर से ऐसा लगता था कि कोई हमें, क्योंकि ऑफ कोर्स पहाड़ काट के मोटरवे बना रहे हैं ना हम, तो ऐसा लगता है ऊपर से पत्थर फेंक रहा है। तो मेरे अपने भाई की शादी किस्सा, वो अपने छोटे बेटे और बीवी के साथ वो सवाल किया, तो कहते आधी रात को एकदम लगा कि खिड़की पे कुछ चीज आके लगी है। और उसके बाद मेरा बेटा जो है वो ने रोना शुरू किया और उसके बाद उसकी आवाज बदल गई। कहते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इन द मॉर्निंग, हमने गाड़ी पकड़ी, हम वापस आ गए, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट बताते हैं ना कि हम लोग यहाँ हैं। आगे आपके साथ आ सकते हैं। वैसे आप क्या समझ रहे हैं? तो कर सकते हैं वो जगह कहीं और चले, वापस क्यों आए? नहीं देखिए, मुझे लगता है जब इंसान अपने भी चीजें, तो शायद जब बच्चों पे डर होता है, बच्चों पे कोई चीज फील कर रहे हैं, कोई बात ना, फिर आपको डर लगता है। खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन आपकी जो सिचुएशन होती है ना, अब अपने हवासों में नहीं होते हो, आपको कुछ भी नहीं पता होगा, आपको दुनिया आप कहाँ हो, किस जगह लेटे हो वो भी नहीं पता होता। जैसे पहाड़ों के बारे में कहा जाता है, जैसे जो वो इलाके जहाँ पे बीच हैं, जैसे कराची में, तो उनके बारे में भी कहा जाता है पर, क्योंकि ये जगहें तो हमारी मेंशन जहाँ पे पानी होता है, पहाड़ है, उनका बसेरा ज्यादा है यहाँ पर। आपके साथ किरण कभी ऐसी कोई चीज हुई? नहीं, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से वो लोग डर जाते हैं मेरे से मैं ही डरा देती हूँ आवाज बदल के। जैसे हम लोग गए हुए थे मुजफ्फराबाद ना, तो मैं और नाजिया रूम शेयरिंग पे थे, तो वो हुआ ये, मेरा ख्याल से तो ज़रूर कुछ ना कुछ था। मैंने अपनी एक चप्पल निकाली, उसने नहीं निकाली, वो जो बेडरूम की होटल की रूम की होती है ना, वो टॉवल वाली, तो मैंने अपनी निकाली, उसकी अपनी थी। तो मैं वापस आई हूँ, मैंने कहा यार ये चप्पल तुमने मेरी चप्पल पहनी हुई थी। कहने नहीं मैं क्यों पहनूंगी। मैंने कहा ये तुम्हारे बिस्तर के पास पड़ी हुई है, वरना मैंने तो वहाँ उतारी थी। कि नहीं मैंने नहीं पहनी। मैंने कहा अच्छा चलो खैर, बेख्याली में उसने पहन भी ली होगी, उसको याद नहीं होगा। फिर कहने लगी कि सुबह उठी ना, तो कहने लगी कि अब वो रूम्स जो है ना, वो अब हम कीज़ दे देते हैं। तो एक मेरे पास की थी, एक उसके पास की थी, तो उसने ऐसे हाथ डाला ना, उसके पास 2 कीज़ निकली। मैंने कहा कहने लगी तीसरी की कहाँ से आई? मैं कहा पता नहीं, शायद तुमने ले ली होगी। फिर कहने लगी मैं तुम्हें बता रही हूँ यहाँ पर कुछ है। मुझे रात में उसको ना 2:30, अच्छा मेरी भी आँख खुली 2:30 बजे, मुझे कुछ बेचैनी सी हुई, बट मैंने कुछ फील नहीं किया। बट उसने देखा कि मैं ऐसी लेटी हुई हूँ और कमरे में ना बहुत एकदम से रोशनी होती है, और किरण मुझे आवाज़ें दे रही है कि नाजिया नाजिया करके, और कह रही है मैंने बस यूं कंबल हटाया है तो घुप अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। तो वो कुछ ना कुछ होता है क्योंकि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, वो ऐसी जगहें होती हैं। तो हाँ, क्योंकि घर तो देखा जाए तो उनका है ना, उनका ही है बिल्कुल, वही रह रहे थे, वही रह रहे थे, हम ही ने कब्जा कर लिया। ऐसा ही है, और हम समझ रहे ये आ गए हमारे पास। बाकी ऐसा ही है। आपके साथ कभी समझ? अच्छा ये वाकया नहीं, मुझे जो अभी भी याद है, जब हम लोग गए थे रत्ती गली, ठीक है, ऊपर पहुंच गए, वापसी पे अब जो, क्योंकि रात शाम हो रही थी, वहाँ 2 से 3 घोड़े, बाकी सारे जो ग्रुप वाले थे सब नीचे उतर गए घोड़ों से। अब वो इतनी स्टीप वो थी,
कभी आप जाना हो ना तो देखना, उस पे घोड़ा ऊपर नीचे टेढ़ा और यूं स्लोप, एक कोने पे घोड़ा, ये समझो नीचे लोग इतने इतने दिखते हैं, घोड़े का जो है ना पैर यहाँ कोने पे, मैं कह रही हूँ मुझे उतार दो, मुझे नहीं जाना, मैं रो रही हूँ। मेरी दोस्त ने कहा अंबर कुछ नहीं हो सकता, नीचे सब इंतजार, तुम्हें आते आते 1.5 घंटा लगेगा। मैं कहा मुझे नहीं बैठना। कहेंगे सामने देखो, वो देखो एक बच्चा बैठा है माँ के साथ, उसको देखो। वरना मैं बहुत डेयरिंग हूँ, मैं नहीं पहाड़ी मैं चढ़ती हूँ, ब्रिज पे मैं जाती हूँ। मैंने, अब वो मुझसे कहे बाजी अगर आप चिल्लाओगे तो घोड़ा पागल हो जाएगा और पीछे। मैं कहा अच्छा, मेरा बैग पैक मैं बस ऐसे पीछे वजन दो बस आराम से। और मैंने आंखें बंद करके अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे, आइंदा नहीं होंगे, अल्लाह मियाँ वो गलतियों माफ़ कर दे। मतलब मैं रोई हूँ लिटरली, मैंने मैं ऐसे कभी घोड़े का भी भरोसा नहीं ना, कभी कुछ यूं स्टीप में, अब सोचो अब यूं हो रहा है, पीछे यूं गिर रहे हैं, ऐसी स्टीप, इंसान आपको इतने दिख रहे हैं चूटी जितना, तो सोचो कितना हाइट पे थे, और वो यूं घोड़ा टक टक है। तो आपको भी क्या बनी थी? आपको भी क्या बनी थी वहाँ जाने की? मैं ये सोच रही हूँ। यार मैं गई ना यार, मैं गई पैदल, 3 घंटे में पहुंची हूँ मैं। अब पूरे उसमें से 2 हमारे बंदे थे, लड़के दोस्त थे, और मैं थी। मैंने कहा मैं पहुंच गई, चीता और एक मेरा दोस्त चीता, एक रुक गया, बाकी सब घोड़ों में गए थे। अब वापसी पे घोड़ों से आना स्टीप, That was too dangerous. अच्छा, वापसी पे अगर पैदल भी आते ना, इट्स नॉट इजी, आपका और प्रेशर लग रहा होता है, नीज पे प्रेशर पड़ रहा होता है, बहुत ही स्टीप जगह पे जब आना होता है। यहाँ पे मैंने दी है, हम तो यूज्ड टू ही नहीं है ना पहाड़ों पे चलने के उतरने के। हम एक तस्वीर दी है मैंने, जब आप पहुंच जाते हैं रत्ती गली के टॉप पे, जो लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो ये नजारा था। आई डोंट नो ये अरंग खेल का है, कितना डेंजरस था। ये कहाँ का है? ये अरंग खेल का है, जो हम लोग जाते हैं ऊपर कश्मीर। और वहाँ पर हम लोगों से गलती ये हुई, वहाँ पर सारे छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए, एक रात वहाँ रुकना मस्ट है। हम रुके ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। हमने कहा यार नेक्स्ट टाइम यहाँ ज़रूर आएंगे और यहाँ रात गुजारेंगे। जो आसमान आपको रात में दिखता है और जो सनराइज दिखेगा वहाँ, ओए होए बहुत हसीन। ये कैलाश का है। कैलाश के भी लोग जो थे वो काफ़ी वो थे मिलनसार, और उनके यहाँ पर काफ़ी टूरिज्म जाता रहता है। बट कैलाश समा मुझे कोई खूबसूरत नहीं दिखा। मैं कुछ सोच रही थी कि ऐसा होगा, ऐसी वादियाँ होंगी, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आई वहाँ से। अच्छा, अंडररेटेड कौन सी आपको जगह लगती है कि अंडररेटेड है पाकिस्तान में, जहाँ पे लोग यूँ जाते नहीं है? लोग तो हर जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ अंडररेटेड है कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं, उसकी खासियत का पता ही नहीं चला। नॉर्दर्न एरियाज के अलावा जो पूरे पाकिस्तान जो बलूचिस्तान साइड है ना, वहाँ नहीं पता, बहुत अंडररेटेड है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बीचेस जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। खैर अभी तो गवादर भी बन गया है, उसके साथ साथ जो हमारे कुछ बीचेस हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है ना बलूचिस्तान में ना सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी का इशू है, बस वरना ऐसा चला जाए। इतना कोई हसीन है वहाँ देखने का, जाते नहीं है, डरते हैं। कुल मनी है ना सबसे नियरेस्ट, कुल मनी जहाँ पे स्टैचू ऑफ होप है, देखा जाए प्रिंसेस ऑफ होप है, नानी मंदिर है, ये सारी जगहें हैं जो आपको गवादर मंदिर भी गई। जो हम लोग उस टाइम पे गए थे मंदिर, वो तब मेरा मोबाइल में सब ब्लॉग खत्म हो गया, जहाँ पे पूरा फेस्टिवल था, पूरी वर्ल्ड से जितने भी इंडियंस जी, क्योंकि हमारे हिंदू कम्युनिटी के बहुत से लोग आते हैं। और अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में देखें तो बड़े बड़े पुराने मंदिर मौजूद हैं, ऐसे केव से रिलीजियस टूरिज्म जितनी हमारे पाकिस्तान में है। मैं स्पेसिफिकली अगर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी को देखे कहूँ तो बड़े पुराने मंदिर हैं बहुत। मदिया पूरा फेस्टिवल था, एक मेला था, कोई आउटसाइडर्स नहीं आ सकते थे। हमारे साथ आर्मी की पूरे थे, तो उनके मुझे था कि जाना है। मैं अपने पे फ्रेंड्स को कहूँ आइंदा नहीं आऊंगी तुम लोग के साथ, कि खाली यहाँ के बैठना है क्या। तो लिटरली गए हम लोग, और केव्स है वहाँ पर, मूर्तियाँ थी और एक खूबसूरत तरीन। चले अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा, मैं जल्दी से आप लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ और आप सब लोगों ने मुझे इसका जवाब देना है, ठीक है? वो कौन सा दोस्त है जो हमेशा प्लान का हिस्सा तो होता है लेकिन प्लान कैंसिल करके खुश होता है, जिसका आप नाम यहाँ पे लेना भी चाहें? कौन इंडस्ट्री में? हाँ, हर प्लान का हिस्सा होता है लेकिन प्लान कैंसिल करके खुश हो जाते हैं।
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बहुत बढ़ चढ़ के प्लान करते हैं, वैसे ही प्लान किसी ने कैंसिल कर फिर दिया, खुद आते वाते नहीं है, प्लान करते हैं, सबको पीछे मैं लगा तो देते कहती हैं, हूँ बस खुद नहीं एक को आते। पक्का करो बस, कोई आए ना आए, वो एक साथ ही पक्का है, बाकी जिसको नहीं आना है, हम यही तो हुआ। अभी मैं कुमराट गई थी, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आता, हम तो सिर्फ 3 गए, चलो मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, जबान दे दी अपनी दोस्त को, मैंने कहा लेकिन मदिया आते तो नहीं हमने है, जबान दे दी है। नहीं वाकई रिकॉर्डिंग्स थी, उसने अपने एक सेमिनार टीचर्स एबल से पढ़ाती सादिया ना, सारी अरेंजमेंट उसने कहा कि जाएंगे ना घूमने, मैंने कहा हाँ जाएंगे पक्का। अच्छा जब हो गया कह रही अंबर मैंने अपना 2 मेरे वो थे मैंने कैंसिल की, मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मेरी रिकॉर्डिंग्स के चल रहे थे, मैंने कहा आंधी तूफान है, कोई जाए ना जाए, मैं तुम्हारे जबान दिए ना, हम 2 चलेंगे। हाँ नहीं, काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं और एंड में बैकआउट हो जाता है, मैं और मैं सारा प्लान बदला जाता है। जबान दे दी तो दे दी, अब जबान दे दी। आप सब जब भी घूमने फिरने गए हैं तो आपके फेवरेट ट्रैवल पार्टनर कौन थे जिसके साथ आपको मजा आता है? मैं आपको बता दूं कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ सबके साथ गई हूँ, मेरे साथ जो है ना, लेकिन मुझे इंडस्ट्री में इसके लोग जानते भी हो, बताएं। मेरे साथ बहुत ही अच्छा लगा था, और उसके साथ मैं गई हुई थी, क्या कहते हैं, मैं सॉरी मैं भूल गई उसका नाम है। अच्छा मेरे तो फ्रेंड्स का नाजिया मलिक, सॉरी नाजिया के साथ मैं 8 दिन तक एक ही रूम में रही थी, हम दोनों एक ही, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, बट जो मुझे उसके साथ मतलब ऐसा लगता था वो फराह है और मैं नाजिया हूँ। मतलब देखिए बाकी के साथ क्या एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता, और मैं मानती हूँ कि अगर हम दोनों का बहुत अच्छा तजर्बा है तो मेरा किसी के साथ बुरा होगा, आपको किसी के साथ बुरा होगा, ये जरूरी बात नहीं होती, लेकिन ये है कि हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही थी, हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठने वाले, जल्दी सोने वाले, तो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था, एक ही बेड पे सोते थे, बड़ा मजा आया। अच्छा मेरे 3 ही दोस्त हैं जो कि स्कूल टाइम से हैं, तो मेरे जितने भी ट्रिप्स होते हैं या तो मैं बिल्कुल अकेला जाता हूँ या तो मैं उनके साथ जाता हूँ, तो मेरा एक ये स्पेसिफिक गैंग है। और आपके लड़कों में कोई दोस्त प्लान कैंसिल नहीं करता? एक है हमारे, वो इंडस्ट्री में है वो, हाँ इंडस्ट्री में, नाम बता दो उनका। वो हमारे हैं ना पीछे लग जाएंगे, मैं क्यों बताओ, नहीं मैं बता दूंगा, उसमें क्या अली अब्बास है ना, अली अब्बास जो है भाई क्या है, अली अब्बास जो है ना, व्हाट इज दिस एटीट्यूड, आइंदा प्लान में शामिल ही नहीं करना, चुपके से चलेगा। वो बहुत उनसे ज्यादा मोटिवेटेड कोई नहीं, वो था ना जो लोग कब जाना, अभी चल रहे हैं, अभी चलो, बस वो जरा ये जरा है उनको। आप बताएं वैसे। अच्छा वैसे हम लोग जब बच्चे छोटे थे तो केरल हमने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत साथ किया है, काफी थाईलैंड इधर उधर। उसके बाद जो है मेरी ट्रैवल पार्टनर जो मेन हर जगह जिससे मैं कहती हूँ ना, सादिया दुरानी, बस वो और मैं, अंबर चलना है, मैं कहती हूँ अब तो कश्मीर चलना है, उसने हाँ बोल दी, बस फिर जिसको आना है आ जाए, हम तो चल दिए। हाँ बस एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वरना हाँ, पर तो अकेले भी एंजॉय कर लेती है। आसिया है मेरा दोस्त, आतिफ है, आतिफ के साथ मैंने बाय रोड, मैं जाती नहीं थी, जो मेरा दोस्त आतिफ तो उसके साथ हमने बाय रोड का मैंने मजा वापस सीखा, क्योंकि मुझे नौजिया बहुत होता है, तो आगे बैठ के मेरी शर्त ये थी बैठूंगी आगे, वरना मैं नहीं जा रही बाहर। अब मुझे 12 घंटे बैठा दो, 2.5 घंटे बाद मैं उठती हूँ। अच्छा इसके साथ में टिप भी दे दो, मैंने भी पिछले दिनों उस पे ही देखा, इंस्टाग्राम पे देखा है कि एक हैक है कि वो लोग जिनको मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा होती है, सो यू जस्ट कवर योर बेली बटन, आप 2 उस पे जब आपको जख्म लगते हैं तो इस पे आप टेप लगाते हैं ना, तो आप उसको क्रॉस की सूरत में लगा ले, सो जस्ट कवर इट अपने बेली बटन को। हाँ ये टोटका, ये मैंने देखा कि जिन लोगों को मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा होती है, सो जिन लोगों ने ट्राई किया तो आप हमें बता भी सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या टोटका है, कि कुछ लोगों को ना वाकई प्रॉब्लम होती है ज्यादा देर ट्रैवल करने की, में पेट्रोल की स्मेल चढ़ती है, इतने लोग मैं बेचारों को देखती हूँ जिससे ट्रैवल नहीं करते, कुछ लोग को जहाज से बहुत डर लगता है, क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं, वो कहते हैं हम बैठ ही नहीं सकते, ऐसे लोग देखे वो कहते हैं जहाज में बैठने के बाद सांस नहीं आ रही। हाँ क्योंकि उनके दिमाग में हो रहा है बंद हो गया। जो लोग ट्रैवल करते हैं ना मोशन से, मुझे एक डैडी से आई, डैडी में बहुत था, अगर इतना से कह देंगे ना कि जरा नंबर दे देना तो मुझे आएंगी डकारे एंड नॉजिएटिंग लिटरली आएंगी। तो मेरा होता है कि फोकस आपका सेंटर होना चाहिए, साइडवेज में भी चक्कर आएंगे, तो अगर ये मैं आगे या मैं पीछे बैठती हूँ, विजन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बस स्ट्रेट और सीधा देखो, और साथ में अगर गोली ना भी खाओ तो भी गोली नॉर्दर्न एरियाज में जब वो है तो मैं एक मोटेलियम खा लेती या ऑन सेट, जो चक्कर और जी मत लाना, मगर विजन सामने होना चाहिए, साइड में बातें नहीं करूंगी मैं, इधर सामने। अगर मुझे कहना अंबर ये निकाल दो, ये चिप्स दे दो, बस फिर मुझे, मैं कहती हूँ मुझसे मैं
गाड़ी के हद तक एंटरटेनमेंट मैं नहीं कर सकती, उसके बाद तो अंबर अलग ही होती है। फिर आपको गाड़ी में पहाड़ पे नहीं लेके जा सकते। नहीं मैं कहती रोको ड्राइवर साहब, म्यूजिक ऑन किया, हम डांस कर रहे हैं। अच्छा, बाय रोड ट्रैवल कहाँ किया जा सकता है, और जो लोग बाय रोड जा रहे हैं उनको क्या चीज आप एडवाइस करना चाहेंगी कि वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेके रखें? किरण, आई विल स्टार्ट फ्रॉम मौसम कौन सा? हाँ, मौसम। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको याद है पिछले जब मरी में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी और आप गुंजाइश नहीं थी उस शहर में इतनी गाड़ियां जाने की, लेकिन लोग फिर भी भर के गए वहां पे। और जब वहां पे स्टक हो गई वहां पे ट्रैफिक, लोगों ने वहां पे हीटर ऑन कर दिए और हमने देखा कितने अफसोसनाक वाकया हुए कि उस हीटर ऑन की वजह से लोग वहां पे गाड़ी में दम घुटने की वजह से, मतलब एक ऐसी गैस निकलती से आप सो जाते हैं और सोते सोते ही आपकी डेथ हो जाती है। सो ये कितना अफसोसनाक वाकया था 2 साल पहले, आपको याद होगा। तो प्लीज ये भी आपने ख्याल रखना कि गाड़ी का हीटर ठीक है आपने ऑन किया, बट फिर आपने क्रॉस वेंटिलेशन कुछ ना कुछ आपने रखना है, कवर कर ले अपने आप को, भाई आपकी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? प्लानिंग करके जाएं और पीक सीजन पे बिल्कुल ना जाएं, जैसे मरी, नथिया गली, जो जहां पर पूरी पलटन पहुंचती है वहां पर अवॉइड करें। ये एक तो ये प्लानिंग करें। दवाइयां जो आपकी बेसिक हैं वो तो आप रखें। फ्लू की चीजें लेके जाएं, स्टमक की कोई आप जरूर अपने साथ रखें, ये सारी चीजें, क्योंकि खाना चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो आपकी ये प्रॉब्लम बाकी हाँ मौसम के लिहाज से आपने अपने कपड़े और वो चीजें रखनी है। और फूड थोड़ा बहुत गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो खाना भी रखें अपने साथ, सही है, कुछ चीजें भी रखें खाने की, ताकि कोई ड्राई आइटम्स हो, ताकि आपकी गाड़ी कहीं स्टक हो जाती है तो आपको बाहर निकलने के, जैसे हमने देखा अच्छा, वो तो खाने पीने की मिल जाती है। अगर आपकी किसी ऐसी जगह पे जहाँ लैंडस्लाइडिंग हो गई वहां पे प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन पानी होना चाहिए, चाय रख मेक श्योर बारिश के सीजन में बिस्किट्स लैंडस्लाइड्स होते हैं बारिश वो अवॉइड करें। ऑल्सो स्नो व्हील्स आते हैं भाई, दूसरे ममालिक में तो फौरन जब जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे आपकी व्हील्स चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन आप पे चेन्स भी व्हील्स में डलती हैं। मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि आपके व्हील्स फिसलें और खुदा ना कोई बड़ा हादसा हो जाए। मैंने मधी एक चीज देखी, लड़कियां जो होती है ना वो बड़ी सैंडल्स अच्छे स्लीपर्स अच्छे पहन के चली जाती है, तो वहाँ ये किसी काम की नहीं होता। वो अपने बैग के अंदर चले जाते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं। आप जॉगर्स ज्यादा ले लें तो वो आप वहाँ पे जैसे जहाँ पे आपको वॉक करनी आप कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ देखा है कि जा रही होती बड़ी शौक से, तो वो बेचारी इतनी अच्छे मैचिंग वहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। कोई आप नो मैटर बहुत अच्छे ड्राइवर, मगर ऐसे मौसम में आप हायर करें उनकी गाड़ियां। अगर आप लोग देखिए अंबर जी, अगर आप खुद से, जैसे अगर मैं इस्लामाबाद या लाहौर से लोग जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो अपनी खुद गाड़ी लेके जाते हैं, ये तो हम कराची से लोग जाते हैं वहां पे फिर वो जाके ड्राइवर्स भी लेते हैं, लेकिन यूजुअली लोग अपनी गाड़ी खुद लेके जाते हैं। अगर सिंपल देखो रास्ता का मरी जा रहे नथिया गली तो चलो ठीक है, अब आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, आगे आप वो देखें, वीडियोस देखें, रील्स देखें, देखकर जाएं। हम लोग वहाँ गए थे अभी कुमराट में एक ऊंचाई पे जहाँ मैंने पराठे बनाए थे, ठीक है ना, वो खूबसूरत है, वो ऐसा रास्ता था, मगर मैं कहती हूँ ना फेरी टेल स्टोरीज में तो वुड्स ऑफ ये इमरान खान ने दरियाफ्त किया था कुमराट को 10 साल पहले, एंड आई थिंक दिस वहाँ पे टूरिज्म नहीं है, इतने लोग नहीं है, और रास्ता उसको वो ये करते, वहाँ पे छोटी सी FX भी गाड़ी जो है ना, अब वो बीच में रुक गई, तो ये ख्याल रखें ऐसी जगह पे जहाँ पत्थर है तो आपकी 4 व्हीलर मस्ट, आपकी नॉर्मल गाड़ी नहीं जाती। अच्छा, आपको पता है KPK में कहीं भी उन्होंने एक टूरिस्ट की हेल्पलाइन बनाई हुई है 1422, तो आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं अगर ये लोगों को नहीं पता है तो। KPK के किसी भी आप इलाके में अगर जा रहे हैं तो वो टूरिस्ट ऑनलाइन उनका वो है, पता होना चाहिए। यस, सही। अच्छा, आप बताएं कि क्या चीज करनी चाहिए, अभी मशवरा देने वाले भी मशवरा दें। अब क्या चीज़ करनी चाहिए, वही मेन फोकस ये होता है कि वेदर देखना चाहिए, और क्योंकि सब नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान को भी पुश करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जरा मेन स्ट्रीम बना हुआ है ना कि हर बंदा नॉर्दर्न एरिया जाता है। बलूचिस्तान मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लोगों को, कोयटा है, गवादर है, वो साइड भी पाकिस्तान की, अगर आप वो साइड भी देखें तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत जगह है। मौसम के हिसाब से अगर आप समझे, जैसे वहाँ बहुत शदीद बर्फ़ पड़ी है नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो स्टिल आप जा सकते हैं बलूचिस्तान, वो स्टिल आपके लिए एक्सेसिबल होगा क्योंकि वहाँ पे इतने एक्सट्रीम हालात नहीं होते, जैसे अगर आप वहाँ जाएं। लेकिन अभी कोयटा में अभी -8 टेम्परेचर था। ये तो एक बहुत मतलब वो समझे आप एक रेयर ओकेजन वाली बात है, आप कोयटा नहीं जाए, आप कराची से करीब भी है, कराची से करीब भी यही चीजें बहुत करीब है, आप 1 घंटे की फ्लाइट पे तो वैसे ही पहुंच जाए, ट्रेन से जाना चाहिए, आपको इतना ज्यादा टाइम, और एक हीटिंग रॉड होना चाहिए। मैं बताऊं कभी कभार का गीजर ना चल रहा, कुछ हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये अच्छी मजे की टिप है ना, नहाना है, क्योंकि हमें याद है
ہے جب ہم لوگ گئے تھے کرن نہیں تھی تو میں اپنی ساس کے ساتھ ممی ڈیڈی ان سب کو لے کے نا, اب وہ چھوٹا سا ہیٹر تھا اور ایک کمرے میں میرے ہسبینڈ میری بچی اور ایک الگ سے بیڈ تھا. جب اٹھے ہیں نا لٹرلی شیشے کا وہ تھا چاروں طرف میں 3 جگہ شیشے تھے, برف جم گئی تھی شیشوں پہ, ایسا لگتا نا آئس باکس میں, یعنی پہن کے بس یوں ہی سوئے تھے, یوں اٹھے کہ اگر کلی کرنا بھی عذاب, اتنی ٹھنڈ تھی. لیکن جن کو عادت نانی کی تو وہ ریٹنگ راڈ پانی میں ڈال کر نا آپ نے گرم کر لی, کم از کم کلی کر لو, منہ دھو رہے, وہ بہت اسینشل ہے. چائے بنانی ہے اس کے اندر کر لو, کبھی الیکٹریسٹی نہیں ہے چائے سے آپ وہ نہیں, تو ٹی بیگز ایک سوکھا ڈرائی پاؤڈر بالکل, یہ مسٹ اور ہیٹنگ راڈ ہو. بچے فلمی بچے ہم تو فوراً ویژولائز کر لیتے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, تو ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میں کبھی بھی نہیں بھولتی, میں نے کہا اس چیئر لفٹ میں نہیں بیٹھنا. پھر پیچھے ہم پھر مری گئے ہوئے تھے تو وہاں مجھے پھر ایک دم سے کچھ چیز نے مجھے بادر کیا, میں نے کہا میں تو بیٹھنا چیئر لفٹ پہ, تو لیکن تب میں گئی تھی میاں کے ساتھ, میں نے کہا خبردار انسان کا بچہ بنو, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی تم نے چیئر لفٹ پہ. بٹ میں ابھی پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, میں معلم جبا کی چیئر لفٹ کی شاید پکچر جو ہیں وہ شیئر کروں گی. میں خود بھی بیٹھی اپنے میاں کو بھی میں نے اسے بٹھا لیا, میں نے کہا چلو اس میں تو ہاں یہ دیکھو نا, ہاں یہ معلم جبا کی چیئر لفٹ میں لاک سسٹم نہیں ہوتا, بہت اچھی. اچھا یہ جو میں اتنا پوز مار رہی ہوں نا, اس سے پہلے میں بہت زیادہ گر چکی ہوئی تھی اور مجھے لگا تھا میرے کولے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوگی نا. اچھا دس از معلم جبا, یہ وہی وہاں پہ جو ایک اچھا بڑا ہوٹل ہے, اس کے پیچھے سے بہت خوبصورت ویو تھا, برف پڑی ہوئی تھی, زیادہ ٹھنڈی سے تھی, اور میری یہ پھمن والی جو مجھے ٹوپی یہ چیئر لفٹ میں میاں کو بھی ساتھ بٹھایا, میں نے کہا چلو میرے ساتھ بیٹھو. ہاں اچھا ویسے زیادہ ہائٹ پر ہو چیئر لفٹ تو اس میں بھی ہلکا سا ڈر لگتا ہے. اچھا یہ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, پھر میں نے اس میں آتے ہوئے میں نے وہ چیخیں ماری ہے میری ہائکنگ کی وجہ سے. یہ تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ برف اصل میں جم گئی ہوئی تھی, تو میں بہت گری ہوں وہاں پہ سیڑھیوں پہ, کیونکہ جمی برف پہ پھسلن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو چیئر لفٹ کی میں نے آپ کو پکچر دکھائی نا, تو میں تو ہوٹنگ کرتی ہوں بہت, میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں, میں ہے ہوں سب چیزیں کرتی ہوں. تو جب ہم پہنچ تو گئے جگہ پہ, لیکن جب واپس آنا تھا تو میرے میاں آگے والی چیئر لفٹ میں پیچھے والی میں, لیکن میں نے پھر بھی اس کو چھیڑا, میں نے بہت چھیڑا, میں پورا انجوائے کرتی ہوئی آئی. یہ ان کی رائڈ ختم ہوگی لیکن اس بندے نے اپنی انجوائے نہیں کی. اب میں نے اپنی امی کو دکھائی ویڈیو, میں نے کہا امی یہ دیکھیں ہم نے, اب میری امی نے یہ امی نے مجھے کہا شوقی میاں دیکھو آگے نکل گیا, خود تمہیں اتنی کیا خرابی تھی تو پیچھے رہ گئی. میں نے کہا امی اصل میں ان کا ویٹ زیادہ تھا, میرا ویٹ کم تھا, تو میں بہت ہی آہستہ آہستہ کی اسپیڈ سے آ رہی تھی. اس لیے جب میں نے اپنی میاں سے کہا کہ مجھے بھی اسپائڈر مین بن کے یہ کرنا, تو نہیں اپنی اسپائڈر مین رک جاتا ہوا پہ. لیکن وہاں پہ ایسے ایسے میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ لوگ مطلب لوگ انجوائے کرتے ہیں, یہ والی زندگی انجوائے کرنے کا نام ہے. آپ کی بہت اچھی یادیں ہوتی ہیں, ہمارے گھر پہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ جو وہاں کی یادیں ہوتی ہیں جو ہم کہیں سے آتے ہیں ٹریول کر کے, وہ الگ ہی چیز ہوتی ہے. ضرور کریں, لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کیا خرچ کر دیے پیسے, ارے میموریز ہیں, آج بھی ہم دیکھتے ہیں انجوائے. اور پاکستان میں بہت فیسلٹیز ہو گئی ہیں, کھانے پینے سے ایکٹیویٹی سے لے کے, آئی تھنک امیزنگ. ہم دیکھتے ہیں کراچی میں ہی لوگ انجوائے کرتے, سی ویو آ جاتے ہیں, جائیں آپ, بہت سارے بیچز بنے ہوئے ہیں, کیمل رائڈ انجوائے کرتے ہیں, بگی انجوائے کرتے ہیں, اور انجوائے ہوٹلز کتنے اچھے بن گئے یار ود فیسلٹیز. اچھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گی, ٹھیک ہے آپ لوگ نا بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, لیکن ہاں اب کیونکہ گلیات میں اور بڑی سی خوبصورت جگہ وہاں پہ جائیں, لیکن مری میں کبھی کبھی جب برف پڑتی ہے اتنا رش ہو جاتا ہے, وہاں پر بدتمیزی بھی بڑی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ سم کیونکہ ان کے لیے اتنا وہ بزنس بن چکا ہوا ہے کہ جو وہاں پہ نارمل جو دکاندار ہیں, ہم نے پچھلے دنوں کتنی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں. سو آئی تھنک تھوڑا سا اوائڈ کریں, آئی ووڈ سجیسٹ یو کہ آپ مری جانا اوائڈ کریں, ٹھیک ہے, آپ نتھیا گلی جائیں, پیک سیزن میں مت جائیں, کیونکہ وہاں پہ رش بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ دکاندار پہ جو ریٹس بھی, ایک پانی کی بوٹل اتنی مہنگی ہو جاتی ہے, سو ڈونٹ گو دیئر. ہم تو نہیں جاتے مری, بالکل نہیں, تو ایسی جگہ مت جائیں. کیونکہ میں نے تو پچھلے دنوں جو ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ بدتمیزی کر رہے تھے, اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار یہاں پہ مت جائیں. اور ابھی تو ہم دیکھیں ہم سولو ٹریولنگ کی بات کریں نا, یہ میں نے بھی جب ٹریول کیا تھا میرا بچہ نہیں تھا, بٹ اب مجھے ہوتا ہے میں کون سی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ میں بچے کے ساتھ ٹریول کروں. بالکل صحیح. سو اب ذرا ہم اس حوالے سے بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ سیف جگہ کون سی ہیں جہاں بچہ انجوائے کر سکے, کیونکہ اب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل میں مال جا رہی ہوں تو مال میں ایک جگہ ہے بچہ وہاں پہ کھیل رہا ہے. تو اب وہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب میری ویکیشنز نہیں ہیں, اب وہ اس کی ویکیشنز ہیں. صحیح کہہ رہی ہو, اب مری بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گیا ہے, رش.
आपको लगता ही नहीं कहीं आप बाहर आए, ऐसा लगता है पता नहीं कहीं आप घूम रहे हैं। तो हम मरीन, इससे अच्छा नथिया गली चले जाओ, वहाँ पर और चले जाए, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों को पता है हम जो भी कर लें लोगों ने तो आना ही आना है, तो वो बड़ा कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उठा रहे हैं। मुझे बड़े दुख से बात करनी पड़ी, बट ये मैं वाकई जो लोग हमें देख रहे हैं, अच्छी बात है, मतलब बाइकआउट करें, क्योंकि मरी वो समझते हैं दुनिया आ रही है और रेट्स ये वहाँ की बेसिकली दुकानदार बेसिकली, वरना वहाँ के लोग हैं वो तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स हमारा तो पाला लोगों से नहीं पढ़ना ना। सही बात है, हमारा तो पाला ऐसे लोगों से ही पढ़ना है कि जिन्होंने जाके कुछ जब बिजनेस चला रहे हैं उन लोगों से पढ़ना है। आप लोग जब अपना कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो फौरी प्लान करते हैं या पहले से आप लोग बुकिंग अपनी कराई होती, क्या होता है? नहीं, अगर मुल्क से बाहर जाना होता है तो पहले से बुकिंग करवाते कि टिकट्स हमें थोड़े सस्ते मिल जाएं। लेकिन पाकिस्तान में तो हमने ऐसे कि चलिए दिसंबर आ रहा है तो 15 दिन पहले 10 दिन पहले से करते तो वो कभी होता ही नहीं, बुकिंग हो जाती है रहने की जगह पता हो। नहीं, लेकिन मैं जाती हूँ ना फैमिली के साथ या कहीं फ्रेंड्स के साथ, तो हम देखते हैं किसका क्या बजट है। अगर हम फैमिली जा रहे हैं तो किसी भी होटल में ठहर लेते हैं, लेकिन हर मेरे साथ जो आ रहा है मेरी फ्रेंड उसका बजट अलग है, तो फिर हम नॉर्मल से होटल्स में उसके मुताबिक पहले से करते हो ना, बेसिकली पहले से भी ऑन द स्पॉट भी करते हैं, क्योंकि अब इतना जाते हैं ना, लोगों से कांटेक्ट बन गए हैं, तो फोन पे हमने बात कर ली, मैसेज पे कर लिया, कोई जी बाजी आ जाए कुछ है तो नहीं, पीआर नहीं, वैसे भी वो ये वैसे ही जान पहचान बन, जैसे अंबर जाती तो आपके वहाँ के लोगों से जान पहचान हो जाती। मैं तो जब तक मेरा होमवर्क ना हो एक एक चीज तुम्हें प्लानिंग देख लो, हमारा इतना मैं इतनी मगजमारी कि ये गाड़ी ये पहले से ही मेरी किताब होती है और मैं पहले 2-3 लोगों से रेट्स लेती हूँ, और सारे पड़ता है पर होटल्स ऑल्सो जबानी नहीं दिखाओ, होटल्स देखती हूँ सारे, ठीक है कि ये होटल्स हैं, रूम्स कैसे हैं, तो लोगों के रिव्यूज भी देखती हूँ कि वो जो वहाँ ठहरे हुए चाहिए, गाड़ी के क्या रेट्स हैं, अगर 3 लोग दे रहे हैं वहाँ के, और अलग से प्राइवेट भी नंबर है वो के गाड़ी के दे रहे हैं, देखो ताकि जब जा रहे हैं ना यहाँ से घर से पूरा इंतजाम हो, ये ना हो कि जी आज ये कमरा नहीं है, आई एम सॉरी आप कहाँ का सामान के साथ घूमेंगे, तो पहले से पूरा होमवर्क कि आइटिनरी आज 2 दिन यहाँ रुकना है, तो 3rd डे यहाँ से निकलना है, सुबह गाड़ी, और गाड़ी 24 घंटे गाड़ी हमारे साथ होनी चाहिए, टाइम भी कैलकुलेटेड होता है कि इतने घंटे का रास्ता है, इतने बजे उठना है, ये करेंगे, आगे से ट्रैवल करना है, तो ये नहीं है मुझे जहर लगती है ट्रैवलिंग कि बस निकलो बस पहुंच जाओ, अरे आप घर से निकले, आपकी ट्रैवलिंग पिकनिक स्टार्ट हो गई, एंजॉय योरसेल्फ। होमवर्क पहले कर लें, छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक भाई, क्योंकि हम शो के जब ब्रेक आई तो ब्रेक में हम ये बात कर रहे थे कि मैं कैसे लोगों के साथ जो है वो ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा मैटर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल कर लेते हैं जो कि बहुत फंसी होते हैं, उनको यूरोप जाके भी बिरयानी खानी होती है, आप कहते हैं कि भाई आप इटली में घूम रहे हैं, आप यहाँ का पिज्जा खा ले, आप यहाँ पे पास्ता खा ले, सलाद भी पाकिस्तानी चाहिए, ठीक है, घर पे नहीं खाएंगे, आप मतलब ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि आप कहीं, वो कहते हैं व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू, खैर सारा वो ना कर लीजिएगा जो रोमन्स कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ खाने में देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत देख लें, बड़ी अच्छी आपको ऑप्शंस मिलती है, यू हैव सी फूड, आपके पास वो वेजिटेरियन इतनी अच्छी ऑप्शंस मिलती है, क्योंकि दुनिया वीगन भी हो रही है। तो वैसे तो ट्रैवलिंग का मजा उसी के साथ आता है जिसका कमरे में दिल कम लगे, बाहर लगे, बस बाहर निकल। कुछ लोग तो 10 बजे तक सोए रहते हैं, मैं समझ नहीं आती अब आए क्यों हो। 10-11 बजे तक वो सोए रहते हैं, हम तो अर्ली उठे, हमारा जल्दी उठ गए। मुझे किरण और बच्चे छोटे थे, हम लोग के पैर सूज जाते थे बाजारों में आके, अब बच्चे के मम्मा बस अब नहीं, थके हुए आधा घंटा, किरण चलो अब नीचे चलते, फिर नीचे जाके मसाज, फिर वापस जाते हैं, सारा रात के 2-2, 3-3 बजे तक बाहर होते थे, टांगे हमारी इतनी सूज जाती है। मैं तो 8 बजे उठते थे और वो ब्रेकफास्ट भी करना हमारे लिए वो भी लाजमी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो होटल का ब्रेकफास्ट जब आप बाहर जाते हैं, कभी ना मिस करूं, वो कितना जरूरी है? कभी बहुत ज्यादा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 5 बजे सोया हूँ, मैं 6 बजे सोया हूँ, अगर ब्रेकफास्ट 7 से 10 है तो ब्रेकफास्ट करना है। मेरे साथ ये मैं लास्ट टाइम पूछ लेती हूँ लास्ट टाइम कौन सा है, और लास्ट टाइम से ज्यादा फिर हम गप्पे भी लगा रहे होते हैं, आराम आराम से खा रहे होते हैं, और जब स्टार्ट होता है ना उस वक्त पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें खत्म भी हो जाती है। मुझे तो लास्ट टाइम नहीं,
फर्स्ट टाइम से लेकर लास्ट टाइम तक बैठे रहते हैं। अच्छा, कई लोग हैं जो सोते रहते हैं, अरे यहाँ अपने होटल का पैसे दिए इसके भाई, वो आपने उसके पैसे दिए। और मैं तो बिल्कुल तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए जाती हूँ, पूरा मेकअप किया, बाल बनाए, अच्छे कपड़े पहने, ऐसे नहीं कि मैं उठ के चली गई, लोग तो वैसे ही आ जाते हैं, मैं तो पूरा रेडी होके। अच्छा, उन लोगों में भी हूँ कि मैं जाती हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहले 7 बजे से जाना है। नहीं, मैं तो ऐसे ही बस जल्दी से उसमें भी है कि अगर फ्रेंड्स है तो ठीक है, जब बच्चे के साथ हैं दोनों बेटियां, तो एक तो क्या ये वो करती नहीं, अलीज़ा तो करती नहीं ब्रेकफास्ट, दूसरी मम्मा कुछ है, फिर मैं जाके ब्रेकफास्ट खुद भी कर रही हूँ, फिर अलग से ना प्लेट बना कर सैंडविच जैम और लेके फिर कमरे में लाती हूँ, फल वल सारे। वीडियो बनाना हो तो और एक एक दो चक्कर पे ये वीडियो भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, सामान रख के फिर वापस आके और ये कर रही होती है। लेकिन ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करते। एक दो दिन अकेली हो ना, फिर मैं कहती छोड़ो, फिर उठूँ मैं, बच्चे भी नहीं, मैं तो अकेली भी मैं मिस नहीं करती। 2 दिन कर लिया, अगर तीसरे दिन फ्रेंड्स है तो ठीक है, बच्चों के साथ तो ये नहीं फिर जाके फ्रिज के पास योगर्ट्स भी जाके देखूंगी कि कौन सी कमरे में जा सकती हूँ, फिर पकड़ूंगी पानी की सब चीजें ना और एंजॉय करते हुए अगले देख करते हुए आराम। मैं भी ऐसा कोई मसला है। तो ब्रेकफास्ट को आपको टाइम देना चाहिए। अच्छा, खाया जाता वही अंडा और टोस्ट। मुझसे मैं तो सब चीज थोड़ी ट्राई करती हूँ, मैं जाती हूँ, वो है एग्स बेनेडिक्ट बनवाती हूँ, सब खाएं, सब खा होता है ना उसमें, सब कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। हाँ, ये तो मैं तो वो वैसे भी बचपन में वाली बच्ची थी कि जब कहीं बुफे में जाना होता था तो मेरे अब्बू मुझे कहते थे मेरे पीस में ये पीस जाएगा, क्योंकि मेरे बड़े किसी को खाने का शौक नहीं था, तो मैं जाती थी और मैं हर चीज खाती थी। उसकी अलग बात है कि 2 दिन मेरा पेट खराब रहता था, लेकिन मुझे खुशी बहुत होता था। वो ना बच्चे को खाने का शौक है, बताने के लिए होता है ये था, तो बताने के लिए भी तो देखनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करना होता है, तो मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा, सिर्फ ब्रेकफास्ट ही अंदर होटल में मजा आता है, बाकी लंच डिनर सब बाहर। आप फिर वो नहीं करो, बाहर करो आप, वो सिर्फ ब्रेकफास्ट। और इंटरनेशनल जैसे थाईलैंड जाओ ना, तो वहाँ पे गर्म गर्म पराठे भी मिलते थे, याद है, मलेशिया में भी, वो तो फिर मजे ही और होते हैं, इतने बड़े उनके जो लगते थे ब्रेकफास्ट, वो अलग ही चार्म है। अच्छा, कभी दौरान सफर किसी स्ट्रेंजर ने, किसी अजनबी ने आपकी कोई मदद की हो जो आपको अभी भी याद हो, कोई ऐसा वाकया हुआ हो? डाइट चेंज में मदद की थी हमारी। मुझे याद है हम लोग शूट पे जा रहे थे और मैंने बहुत पता नहीं क्यों ऐसा मैंने उनको कहा कि मैं खुद आऊँगा, कोई मसला नहीं है। ये जो कुंडमली साइड है, जो गडानी बीच जो है, वो उस तरफ हमने जाना था, तो मैंने बोला मैं खुद आऊँगा। अच्छा, बहुत शर्म की बात है, लेकिन सच है कि मुझे टायर चेंज करना नहीं आता था, अब है। तो इस तरह की ये बात तो मशहूर है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली जो सिंध के लोग हैं, कुछ पंजाब के लोगों से मेरी इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं है, कि अगर आप कहीं पे किसी तकलीफ में होंगे ना, तो जो लोग हैं ना वो बहुत मदद करेंगे आपकी। तो ये मुझे इस तरह याद है कि मैं एक जगह, मेरा ये टायर का बड़ा मसला हो गया था और बहुत लोगों ने आके मदद की थी, और बहुत अच्छे लोग होते हैं, और मतलब आप उनको कुछ ऑफर भी करो कि यार आपने इतना अपना टाइम लगाया, अपना वक्त लगाया, पैसे ले लें आप, ये ले, वो नहीं लेते। तो ये तो है, मतलब ये मुझे याद रहेगा, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा एक लेसन था मेरा। हम बहुत ज्यादा, मेरे साथ होता है, बल्तिस्तान गई हुई थी, हम लोग गए हुए थे, तो मैं, मेरी फ्रेंड्स थी, हम लोग एक शॉप पे, वहाँ पे ड्राई फ्रूट बड़े सस्ते मिलते हैं, ये तकरीबन 2018 की मैं बात कर रही हूँ, तो ड्राई फ्रूट बड़े सस्ते से थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। अच्छा, हम तो हर चीज़ पूछ रहे होते हैं ना, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की, हर चीज़ पूछ रहे होते हैं, लेते कुछ चीज़ें। वहाँ एक कोई लेडी थी, उन्होंने सलाम किया हम लोगों को, वो पहचान गई, फिर उन्होंने कहा कैसी हैं, मैंने ठीक है, क्या यहाँ आई हुई है, मैंने कहा घूमने, वो कह रही कि मैं यार टीचिंग करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, वो इतनी देर से देख रहे, शॉपकीपर भी हमें लगा हुआ है, ये फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने ली, सारी जो चीज़ें मैंने नहीं ली ना, आप यकीन करें, मैं वो आज भी मुझे वो औरत याद है, उसने क्या किया, अपने लिए थोड़ा सामान लिया, और जो चीज़ें मैं सिर्फ पूछ रही थी, तो वो भी उसने ड्राई फ्रूट उठाना शुरू किए, कि इतने इतने पैकेट्स थे आधा किलो के, कि ये भी दे दें, ये भी दे दें, 3 पैकेट्स इसने निकाले। तो मैं समझी अपने लिए ले रही, हमने अपना हिसाब किताब कर दिया। अच्छा, मैंने तो तो मैंने अपने लिए अखरोट जो लगता 18 kg लिए थे मैंने इतने, मेरा सूटकेस भर गया था, क्योंकि बड़े सस्ते थे अखरोट, बहुत सस्ते थे, 18 kg की डीलिंग करनी थी, मैं अपना पूरा सूटकेस भर के लाई, मैंने 18 kg, क्योंकि हम बहुत सारे लोग गए थे ना, तो सबका सामान भी था, चीजें थी। ये दुकान पर कहाँ खोली आपने, कहाँ बेचा? मैंने अपने घर में, मैंने अपनी फैमिली, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, सबको बांटे थे मैंने, अपने दोस्तों को साथ लिए थे। वो नहीं होते कागजी अखरोट जो होते हैं, वो क्या कमाल के थे, आज तक लोग याद करते हैं। मैंने बहुत सारे अखरोट लिए थे। अच्छा, फिर उसने क्या किया, 3 पैकेट्स लिए, जब मैं जाने लगी ना, तो उसने मुझे गिफ्ट किया। मैंने बोला अरे
बोली मैंने बहुत सामान ऑलरेडी लिया हुआ है, तो कहने लगी आप ये पूछ रही थी, मैंने बोला भाई मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, इनके वजन से मुझे ख्याल आया, आप लोग पाकिस्तान में कहीं भी है ना, आपका वजन ज्यादा है या आपने कैरी नहीं करना और कुछ सामान आपने अपनी घर भिजवाना है, पाकिस्तान पोस्ट इज दी बेस्ट, सबसे चीप है। अभी हम लोग क्वेटा गए थे, हमने कोई 20 kg ना अलग भिजवा दिया जो शॉपिंग वगैरह की थी। हमने कहा टेंशन ना हो, प्लेन में ये इतना अलाउड है, इतना नहीं है, खामखा की ड्यूटी लगेगी। समझो हमने कितने हजार रुपए दिए, कितना अच्छा, आराम से यहाँ 5 दिन में पाकिस्तान पोस्ट बेहतरीन सर्विस है और कोई चीज इधर से उधर नहीं। अच्छा, ऑलवेज जब आप कभी भी ट्रैवल करना चाहें तो ट्राई टू ट्रैवल लाइट। लड़कियों के खैर कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमने सारे फैशन होते हैं, अरे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ट्रैवल लाइट करें ना, जितना भी कोशिश करें ना ट्रैवल लाइट करने की, उतना बेहतर आप एंजॉय करेंगे। आपको कैसा बंदा याद हो, कोई अजनबी शख्स याद हो? हाँ, मैं जब हम लोग टर्की गई थी, मैं उसके लिए हमारी चीक उसकी ट्रेनिंग थी 6 दिन की ना, तो वहाँ पे सब लोग होटल में थे, तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, किसको चलना है मेरे साथ। मॉल करीब वॉकिंग डिस्टेंस था, आधे घंटे का रास्ता। मैं वॉक करते रह गई, वापसी पे ना थैले थे शॉपिंग की, तो बड़े वहाँ का एक टर्किश आदमी था, बड़ा बिल्कुल बहुत स्मार्ट सा, तो उससे मुझसे वॉक करते करते अब मुझे डर भी लगे, बात करते कहेंगे कैन आई हेल्प यू, तो मैं कहा नो इट्स ओके, ओके इट्स ओके आई विल हेल्प यू। अच्छा, बात करता रहा, फिर उसके एक तो कम्युनिकेशन इज अ बिग बैरियर, ठीक है ना टर्की में। अब वो कुछ बोले शोबिज यूं टूटी फूटी, फिर उसने कहा एनीथिंग यू नीड, मैंने कहा टेल मी सिम चाहिए थी मुझे। अब करके ना वो कहेंगे दिस उधर। अच्छा, हम जा भी रहे हैं, वो बहुत ही डिजर्टेड सी बिल्डिंग थी। अब मैं सोचती मुरब्बत क्या, मैंने कहा कि ओके, अब मैं बातें कर रही हूँ, मैं कहा नहीं सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आयतुल कुर्सी पड़ी, डर भी लग रहा था, रास्ता पीछे से लेके आया था दरअसल। अंदर गए, अच्छा वहाँ सिम दिलवाई, वहाँ पे था सिम का, मैं भी डर रही थी। कुछ पैसे कम थे, अब टर्की क्या है लेरा, तो वो कोई 6 लेरा कम थे। अब मेरे पास वो कैश नहीं थे, डॉलर्स थे ना, तो उसने कहा वेट आई विल गिव, तो उसने 6 लेरा भी दिए। फिर होटल तक छोड़ने आया, फिर मैंने सबसे मिलवाया, मैंने कहा मीट हिम, उल्टा पे बैठ के मैंने उसको कॉफी पिलवाई नीचे वहाँ पे, कैसे इतना किया। तो दैट मतलब एज अ जेस्चर ही वाज गुड। उससे बाद भी मगर बाद में जो है फिर कहने का चलो मिलो, फिर मैं डर गई ना, मैंने कहा नहीं भाई बस ज्यादा नहीं। मुझे साथ में ना सारे कुलीग्स कहने लगे तुम ले आई, लोग क्या सोचेंगे तुम इसको साथ, तो मैं कहा क्या सोचेंगे, तुम सबसे मिलवा रही हो, फिर मैंने कोई गलत थोड़ी किया। एक ने हेल्प की, मैं बुलाया, उसको कॉफी पिलाई। तुम लोग सोच कितनी गंदी है तुम लोग की, ऐसे क्यों सोच रहे हो? ममालिक में थोड़ा डर भी लगता है, किसी भी डर था, मगर हाँ दैट वाज अ रिस्की, जो कि रास्ता पीछे से था, वो बिल्कुल अजीब सा। तब मैं डर, अब ना इधर की ना उधर की, बस सोचती रही, बस पढ़ती रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र जब अंडर हुए, लेकिन उसने वो हेल्प की, 6 लेरा भी, और बस दैट्स इट। बाकी आपको किरण को याद हो कैसा? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं। कभी कुछ जैसे सामान उठाना हो तो वो तो फिर मदद कर देते हैं, एयरपोर्ट पे भी मदद कर देते हैं, प्लेन में भी कर देते हैं। ये देखिए, ये बात ऐसी है कि पाकिस्तान में जब आप ट्रैवल कर रहे थे ना, तो और वो देखते हैं खवातीन है और बैग भारी है, तो कोई ना कोई आके आपकी हेल्प करते हैं। जब आप बाहर ट्रैवल करें, आप वेस्ट में हो, कोई ऐसा नहीं आता। और जैसे अभी राना ने बड़ी सी बात की ना कि जो अंदरूनी सिंध में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, उनका टायर पंक्चर हो गया, तो वहाँ पे जो हमारे सिंधी भाई कैसे आकर उन्होंने एक तरह से रेस्क्यू किया। तो आप पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएं, लोग इतने मेहमान नवाज हैं, और इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो पाकिस्तान आते हैं। अभी मैं ज़रा दूर की बात भी नहीं कर रही, अभी ननकाना साहब में आपने देखा कि कितने बड़ी तादाद में हमारे सिख यात्री आए थे पाकिस्तान, और वो जाते हुए लिटरली रो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे लिए इससे ज़्यादा हंस राज हंस, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा सिंगर है, वो कहते हैं कि भाई मैं जब पंजाब आता हूँ, लाहौर आता हूँ, तो जिस तरह से लोग मुझे ट्रीट करते हैं और जैसे मेरी ट्रैवलिंग होती है, कि मुझे लगता है कि इस मुल्क के लोगों से अच्छा, इतना वेलकमिंग मुल्क से अपने मुल्क का नाम मिल लिया, कोई और मुल्क है ही नहीं। मतलब लोग कहते हैं हमारी मुफ्त ट्रैवलिंग हो जाती है। आप किसी की दुकान पर जाए कुछ खाने के लिए लें, वो आपसे पैसे नहीं लेते। बिल्कुल फॉरेन ट्रैवलर्स बिल्कुल ऐसे हैं। मुझे याद आया, हम लोग कश्मीर में जैसे ट्रैवल करते हैं ना, तो अब वॉशरूम अगर किसी ने जाना है तो हम लोग रुक के घरों में जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, इतना वेलकम करते हैं, इतना वेलकमिंग, उनको डर भी नहीं होता कि जैसे बहुत हमारा वॉशरूम यूज ये पूछते
पूछते भी नहीं आप कौन क्या किसके साथ, कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, ड्राई फ्रूट भी देंगे, आपको सर्व भी करेंगे, कोई सवाल नहीं होते भाई कुछ नहीं। नॉर्दर्न एरियाज बहुत सौगातें भी हैं, वो कहीं का पीच के एप्रिकॉट केक बड़ा मशहूर है। एप्रिकॉट केक, एप्रिकॉट केक एक हुंजा का आई थिंक, हुंजा का एक बेकरी जो है वहाँ पे ना कि मशहूर है वहाँ पे, वहाँ का हमने खाया था। हमने कहा चलो खाया था, वो सही है, अब जाहिर से एक चीज फेमस हो गई तब तो खैर इतनी वेराइटी हो गई, जमाने में होगा। और एक वहाँ पे जो है ना वो जो हुंजाई ब्रिज है, कोई क्या नाम है उसका भी, जो बहुत डेंजरस है, बीच में बंद भी कर दिया है, जिसमें गैप। अच्छा, यार्ड स्टेक होता है हुंजा का, वो खाया आपने? दिस इज स्टेक समथिंग, यार्ड स्टेक। हमने सिर्फ खाया वो करने के, मतलब ऑब्वियसली अब क्योंकि एक जमाने में होता होगा ना, अब इतनी एडवांस हो गया हर चीज। वहाँ पे स्टेक इन अ डिफरेंट फॉर्म था, जैसे गोश्त के छोटे छोटे पीस, गोश्त तो बहुत पीसेस, वो जो शहतूत है चित्राल के, ओए होए होए बहुत मजे के, मीठे और सफेद रंग के होते हैं, वो लाल उस तरह नहीं होते, वो बेरी वाले शक्ल के डिफरेंट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको जो इज्जत मिलती है ना, जो आपको रिस्पेक्ट एंजॉय करते हैं, कहीं नहीं है दुनिया में कहीं। और नॉर्दर्न एरियाज वाले तो बहुत वेलकमिंग, फल रास्ते में आप जाते हुए आप फल तोड़ सकते हो। आपके छोटे छोटे कीनू लगे हुए हैं, सेब छोटे वाले लगे होते हैं, और जो खूबसूरती है वो जो मतलब खूबसूरती इंसानों में, बच्चों में, हमने चित्राल में देखे, हम लोग फैमिलीज से मिले, ऐसे जैसे कोई यूरोपियन आप किसी लोगों से नहीं मिल रहे। मैंने बड़ी तस्वीरें भी खिंचवाई थी, उनके कुदरती पिंक होंठ, ये पिंक बिल्कुल ब्लश और कलर्ड आईज और लाइट कलर के बाल। अच्छा, चित्राल की बात करें, कैलाश में तो तभी तो वो कहा जाता है कि वहाँ पे हुस्न बहुत। और आपको पता है वहाँ पे जो हम घर में गए थे ना, पूरी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसके अंदर जो उनके दादा अब्बू थे 100 years of age, और वो लकड़ी ला के भी इतना बहुत जान है भाई, देखो तो माशाल्लाह 100 years 100 साल की उनकी उम्र थी। हुंजा में कितने ज्यादा ओल्ड एज के लोग हैं, हुंजा इस फेमस के वहाँ पर 100 and above क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ पे। ग़िज़ा भी बहुत जरूरी है, आई थिंक वो लोग, उनका जो खाना है, उनका जो पानी है, उनकी हवा, उनकी पोल्यूशन नहीं है ना, हर चीज प्योर, पोल्यूशन ही नहीं है। अच्छा, वैसे आपको ऑप्शन दिया जाए कराची से हटके किसी और अप नॉर्थ में रहने का, तो आप रहेंगी कराची छोड़ के? कराची या लाहौर, दो ऑप्शन, दो लाहौर से। नहीं, लाहौर तो मेन ऐसा है, मतलब नॉर्दर्न एरियाज। अच्छा, मैं लाहौर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लाहौर रहती है ना, इसलिए मैंने कहा। मेरा तो एक घर लाहौर में भी है। मुझे लगता है शायद रिटायरमेंट लाइफ में मैं कभी कोई कहूँ कि एक जाके वहाँ को रहकर वापस आ जाऊँ, लेकिन अच्छा, मैं रह सकती हूँ आराम से, हमें आदत हो गई है। मैं यही बोल रहा हूँ, जो बंदा कराची में रहता है ना वो नहीं रह सकता, इसलिए हम दिन गुजार सकते हैं। मुझे पहाड़ी इलाके बहुत पसंद, क्योंकि ये हमारे वेकेशन, हम जो काम करने वाले लोग हैं ना, ये हम सिर्फ एक हफ्ता या 2 हफ्ते की वेकेशन जो है वो बस वो करें, बोर होने ज्यादा नहीं रह सकते। मैं अभी क्वेटा कैंट गई थी, कोई 22 दिन हम लोग वहाँ रहे। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा घर से इतना दूर रही हूँ, और एक दिन एक पल भी मैं होम सिक नहीं हुई हूँ। मुझे इतना वहाँ मजा, मतलब मैं वहाँ पर जिंदगी गुजार सकती हूँ। कराची वैसी आई बिलीव वहाँ पे पोलो क्लब है, वहाँ पे गोल्फ क्लब, वो इतना खूबसूरत है, बहुत हंसी। और वहाँ पे जब हवा चलती है तो मेरा एक बार कोयटा जाने का, ये मौसम था ऑटम वाला ना, जब सब पत्ते झड़ रहे खूबसूरती है अलग ही, मतलब वो डंडियाँ आपको दरख्त की दिख रही हैं, वो भी इतनी खूबसूरत। ये हमारे काम की भी खूबसूरती है कि काम की वजह से मैं भी इवेंट करने, होस्ट करने के लिए गई थी, which was on 25th December। अल्हम्दुलिल्लाह के पूरा मैंने समा की वजह से, मैं पेशावर, मुझे नहीं लगता मेरा जाना होता, लेकिन मैं समा की वजह से मैंने पेशावर भी ट्रैवल किया है, बहुत से जगह ट्रैवल किया, खुद अपनी वजह से भी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ना हमारी जरा प्रायोरिटी जरा चेंज होनी चाहिए। हमें होता है कि चलो यार मुल्क से बाहर चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, हमारे पासपोर्ट में इतने ठप्पे लग जाए डिफरेंट ममालिक के, ये होता है कि अच्छा ये फलाने मुल्क की स्टैम्प भी लग जाए, फलाने मुल्क की स्टैम्प भी लग जाए। लेकिन वाकई जो अपने मुल्क का मजा है, और जाएं तो ऐसे लोगों के साथ जाएं जो फंसी ना हो। कैसे लोगों के साथ जाने वैसे मुझे ये मशवरा दे भाई, जो हर चीज में ना छुट्टियां खराब नहीं करनी है, छुट्टियां नहीं खराब, को बुराइयां करे कि आपको बेड भी अच्छा नहीं लग रहा तो ब्लैंकेट भी अच्छा नहीं लग रहा तो वॉशरूम भी अच्छा नहीं लग रहा तो खाना भी चाय भी, ऐसे लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, आपको भी तंग करते हैं। ये सफर को सफर नहीं समझते, वो समझते हैं आपको सफर करा देते हैं। तो भाई सफर में तो हर चीज होती है ना, आपको तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं जाना चाहूंगी। कैसे लोग होने चाहिए साथ में? अच्छा, मुझे लगता है कि जब आप प्लान कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते किसी से कि आप मुझे बताओ कि आप क्या करते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो उस वक्त बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ ऑब्वियसली ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि
آپ کی کیا چوائسیز ہیں, آپ کی کیا پریفرنسز ہے, کہ آپ کون سا انسان ہو. آپ وہ انسان ہو جو صبح اٹھتا ہے جلدی, یا آپ وہ انسان ہو جو بولتا ہے کہ یار میں آرام سے نیند پوری کر کے اٹھوں گا تب بات کریں گے. صفائی کا آپ کو شوق ہے, مطلب میں آیا ہوں باہر سے یا بیگز لے کے آیا ہوں شاپنگ کی, تو میں اس کو تمیز سے جگہ پہ رکھوں, آپ خود کریں کیا ایسے یوں پھینک بھاگ کے کر لوں. تو یہ ساری ذرا بہت بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ روم شیئر کرتے ہیں نا, گھر تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے, جب آپ روم شیئر کرتے ہیں نا تو وہ 2 دن میں پھر آپ بولتے ہیں کہ مجھے نہیں فرق پڑتا میں اٹلی میں ہوں یا میں کہاں ہوں, مجھے واپس آنا. اچھا ہم لوگ بول دیتے ہیں اب جیسے فرینڈز ہیں, فرینڈز میں بھی ہر ایک کی اپنی اپنی نیچر ہے. ابھی کسی کا کوئی چیز ہے تو یہ اس کو ایسے رکھو بھائی, مجھے بہت بے چینی ہوتی ہے, آپ نے بتا دیا بغیر کوئی چڑے, اگر وہ بھی تو انڈرسٹینڈ کرے نا, اس کا بھی تو موڈ نہ خراب ہو. دوستوں میں چلتا ہے, طریقہ ہے بات کرنے کا, صحیح ہے نا. باتھ روم ٹیشوز سب سے زیادہ گندا ہے, تو ہم ریکارڈنگ پہ تب بھی لوگ جو ہے نا ٹیشوز گیلے گیلے سنک پہ ہوتے ہیں, اور میں کہتی ہوں پلیز ہم سب پڑھے لکھے ہیں, ٹیشو وہاں پہ ڈسٹ بن ہے وہاں ڈالو. اور ٹریولنگ میں بھی یہ اچھا میں بہت زیادہ کمپرومائزنگ, آئی ایم ویری مچ ڈاؤن ٹو ارتھ, ایڈجسٹ کر میں اتنا ایڈجسٹ کر لیتی ہوں, میں دوسروں کے ٹینٹرمز بھی برداشت کر لیتی ہوں, میں زیادہ میری ہے یہ عادت جو کہ نہیں, تو میں ہر جگہ ایڈجسٹ کر لیتی ہوں. ہاں کہ اگر دوست بھی ہے چلو کہوں گی یار پلیز اب جلدی کر لو یار, کل سے جلدی جانا ہے. ہاں اگر اس ٹرپ میں سے نہیں سمجھی جو بھی ہے پرابلم, تو نیکسٹ ٹائم آئی میک شیور کہ میں یار کر لیا. اگر کسی نے کچھ گند بھی پھیلایا ہو خود اٹھ کے صاف. بٹ دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا دوست کتنا قریبی ہے. اچھا مجھے ٹرپ کے دوران کوئی ایسا آپ نے جو کھانا کھایا جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو, کوئی ایسے ٹیسٹ آپ کی زبان کو لگا جو آپ کو کہا یار یہ مجھے ابھی بھی چیز یاد ہے, کوئی ایسی چیز کھائی ہو آپ نے؟ کباب تو مجھے لگتا ہے کہ چپلی کباب تو وہ بولے گا, وہ موسم جو ہے نا. مجھے لگتا ہے پہاڑی علاقوں میں نا چکن وکن نہ کھایا کریں, وہ ایک تو گلی بھی نہیں ہوتی وہاں پہ, تھوڑی گلنے میں وقت لگتا ہے. دال ہوتی ہے کڑھائی دال, دیکھو دال ماش کی دال ہر جگہ دال بیسٹ ہے, سارا مزہ ہے. گرم گرم نان اور ایک مچھلی, جب آپ باٹا کنڈی میں وہ جو دریا بہ رہا ہوتا ہے وہیں پہ منجی بیٹھ کر نا, اور وہاں پہ آپ وہ گرم گرم مچھلی فرائی کر کے دیتے, وہ بھی بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں. کیونکہ ناران اور میٹھے پانی کی مچھلی اس کا ٹیسٹ بھی اور موسم ناران. دیکھو میں آئی تھنک ٹریولنگ میں اگر دھوپ ہے نا میں بالکل انجوائے نہیں کروں گی. ہم لوگ اگر خوبصورت جگہ پر تیز دھوپ ہے تو ہم لوگ بیٹھے رہیں گے, ابھی نہیں نکل رہے یار 4 بجے. ناران ایک ایسی جگہ, ناران تو ایک ہے آگے باٹا کنڈی, جہاں پہ تھرو آؤٹ سپٹمبر سے پہلے آپ جب جاؤ آپ کو کلاؤڈی موسم ملتا ہے, بادل نیچے ہیں, خوبصورت ترین. آئی تھنک بیسٹ اب تک جو ہے نا ناران, ایزی جاؤ, ایک ہفتے پہ رہو اور واپس آ جاؤ. وہاں کا روٹ بھی بہت اچھا خنزا تک جانا ہے. مجھے تو کھانے تو خیر سبھی کے اچھے ہوتے ہیں, اور میں تو اپنے پسند سے جو ہے مسالے ڈلوا لیتی ہوں, لیکن مجھے جو فیوریٹ میری جو ہے نا وہ لاہور کی جو کڑھائی جو ہے مکھن والی, جی وہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے, مجھے وہ بہت پسند ہے. جب بھی میں جاؤں یا گزروں وہاں سے لاہور سے کہ بائی روڈ جا رہے ہیں تو میں وہ کڑھائی کھانے ضرور ہوں. اچھا اگر آپ لاہور جائیں, آپ جو لاہور سے ٹریول بھی کرتے ہیں, وہاں پہ لکشمی چوک میں ایک کشمیری چائے ملتی ہے پیڑی کے ساتھ, وہ بھی ضرور لیجیے گا. اینڈ دین دیر از وہ لکشمی چوک میں بڑا مشہور ہے وہ قیمے والا, ایک میں نام اس کے لے کے مشہور ہی نہیں کرنا چاہتی, اس کی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے, لیکن بٹ وہ بہترین بہت مزے کی آپ کو جو پشاور میں کھانا اچھا ہے, وہاں پہ افغانی پلاؤ وغیرہ, روز وہ کابلی پلاؤ. آپ بتائیں بلوچستان میں لسی کی بات کرتا جو لاہور میں, جو آپ کو پتہ ہے میں لاہور کی میں نے کبھی زندگی میں پیڑ والی لسی نہیں پی. میں نے ایک دفعہ پی تھی, ایک دفعہ پی تھی, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا, تو میرا تو پیٹ خراب ہو گیا بہت زیادہ پیٹ خراب, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویل ورتھ اٹ, میں دوبارہ پیوں گا. کھانے تو بہت اچھے ہیں. اچھا لیکن آپ سوئے تھے کہتے ہیں اس کو پینے کے بعد نیند بڑی آتی ہے. بالکل آتی, بالکل آتی. یہ جو بولتے ہیں نا کہ نہیں آتی یا ہوتا ہے, ایک تو ویسے بھی لسی کو پی کے نیند آتی ہے, ہم ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ, اور اس کا جو چاٹی کی لسی کے بعد جو رش ہے نا, لیکن آپ جب وہ والی پیئیں گے نا تو پھر آپ شاید وہیں سو جائیں. میٹھی لسی ہوتی ہے بھائی, اور اس میں ہوتا یہ لاہور میں تو اسپیسیفکلی اگر آپ اندرون چلے جائیں تو آپ کے پاس کوئی مزے کی آپشن ہے. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے لاہور کے وہ بہت سارے لوگ جو کہ جن کو نہیں موقع ملتا جی کہ آپ اندرون لاہور بھی آپ کو ایکسپلور کر سکیں, آپ نے نہیں چھٹی مل رہی نہیں جا سکتے آپ اندرون لاہور کو, آپ ذرا ایک گائیڈ پکڑیں, وہ آپ کو اتنی چیز سیر کرائے گا. اور لیکن نکلنا آپ نے صبح کے ٹائم, صبح کے نکلیں, یہ چاٹی والی لسی بھی آپ کے سامنے, وہاں پہ
भज्जे के पाए भी, सब चीजें वहाँ पर हैं। और संडे को जाएंगे तो संडे को वहाँ पे मिलता है जनाब एक स्पेशली वहाँ के अंदरूनी लाहौर की सौगात है, दास कुलचा। उसको वैसे कहते हैं उदास कुलचा, पता नहीं इसका नाम दास कुलचा कैसे पड़ गया। उदास कुलचा, हाँ उदास कुलचा उसको बोलते हैं पंजाबी में, दास कुलचा। तो छोटा सा कुलचा होता है, उसके साथ एक अलग से डिफरेंट चने होते हैं। आप वो खाएं और उसके बाद ना फिर सो जाए हाँ, क्योंकि संडे का लिटरली नाश्ता ऐसा होता है जब आप देसी नाश्ता करें कि आप सुबह नाश्ता करें सुबह जल्दी उठ के और फिर आप फिर सो जाए। वहाँ पर चने वगैरह ज्यादा मिलते हैं। लच्छा पराठा कहीं वहाँ मुझे नहीं मिला, ये कराची सिंध की साइड पर ही है। अच्छा नहीं, लच्छा पराठा वो हम आपको बताएंगे, आप बताएंगे क्योंकि वहाँ जो लाहौर में जो नान मिलते हैं वो आपको कराची में वैसे नान नहीं मिलेंगे। लाहौर में जो सुबह नान चने मिलते हैं वो आपको कराची में नहीं मिलते। हाँ वो आपको कराची में नहीं मिलते। जो लाहौरी चने हैं ना, चिकड़ चना जब ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं ना तो खाना हमेशा ज्यादा अच्छा लगता है। अगर टेस्ट वाइज देखे हमारे कराची के खाने का टेस्ट ज्यादा अच्छा है। What I've noticed, लोग कहते हैं ना लाहौर सामने का नहीं, अपनी डिफरेंट चीजें हैं। जैसे चनों की बात करें, ये लाहौर के ओवरऑल कुलचे चने जो हैं वो लाहौर के वो बिल्कुल डिफरेंट। ये कढ़ाई मैंने जो खाई है लक्ष्मी चौक की, मैंने कराची में नहीं खाई है। हाँ वो टेस्ट मुझे नहीं आ रहा कराची में। वो लेकर आए वैसे भी बाद में यहाँ पे कराची में भी शुरू किया। मुजफ्फराबाद जाए तो कश्मीरी खाना जरूर खाएं। वहाँ का जो खास है ना मुश्ताबा जो होता है, जो पीस के वो बनाते हैं मक्खन वाला, बहुत मजे का होता है। मैंने फर्स्ट टाइम वहीं पर ही खाया। क्या उसमें क्या होता है अगर आप उसको रिफाइन कर सकें? वो जो कीमा होता है ना वो पूरे सिलबट्टे पे पीसते रहते हैं, कुश्ताबा। वो बड़े बड़े कोफ्ते होते हैं, उनकी शादियों बनता है। वो कीमे को, गोश्त को इतना पीसते हैं बिल्कुल आटे की तरह करके सॉफ्ट, फिर वो बड़े बड़े कोफ्ते बनाते हैं और सफेद रंग की, हाँ सफेद रंग की ग्रेवी होती है दही में, और वो मक्खन का वो फ्लेवर होता है ना, बहुत मजे का होता है। कश्मीर में शादियों में वो बनता है। मुझे वो याद आ गई भाई, जो हरीसा भी लाहौर में बनता है। हरीसा, लेकिन हाँ हरीसा तो वो नहीं खाया, बस मम्मी ने बनाया। वो जो संडे को कहीं दिखता है। अच्छा लेकिन भाई निहारी और बिरयानी कराची की है, लाहौर में पुलाव बहुत अच्छा है। खाओ से तो कराची की फेवरेट है। देखिए हाँ, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो पुलाव लाहौर का कहाँ अच्छा है, पेशावर का अच्छा। आपको नहीं, आप लाहौर में खाई ना, बताना मैं जा रही हूँ। मैं फरमाइश करती हूँ ये खाना है, पता नहीं है मुझे वो नहीं होता, मुझे बस निकलो बाहर। मुझे होता है कि आप जहाँ ट्रैवल करें तो उस ये होता है टेस्ट जरूर करें आप। आपको पता है कि लाहौर के जो लोग हैं उनको पता भी नहीं खाउसा क्या होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता, कराची के लोगों को पता है, नहीं पता। अच्छा खाउसा क्या तो उनको पता ही नहीं है खाउसा क्या। अच्छा वैसे ये एक बर्मीज यहाँ पे हमारी मेमन कम्युनिटी बहुत अच्छा बनाती है, उसमें थोड़ा सा उसको देसी टच देके बनाती है, बट बर्मीज ओरिजिनेटेड वहाँ से, बट बहुत जबरदस्त है। कोई बात नहीं, आप आए, हम आपको, आपकी बहन आपको खाउसे खिलाएंगे, ठीक है ना? तो खाउसे का शो करें, जहाँ भी जाए बस एंजॉय करें, चाहे एक दिन के लिए जाए चाहे एक हफ्ते के लिए जाए, और अपने प्यारों के साथ एंजॉय कर सकें। शाद रहे, आबाद रहे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।